इंडिया जैसी कंट्री में मुझे अगर 2 लाख का बैग बना के बेचना है, बना सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? That's a space. Oh, big space. 2 लाख क्या चीज़ है? Any good luxury brand in India, what are the 3 things that they did well? They did good quality products. They priced it very sensibly, and the name. Name is also important. 90% is the name. So how come you came about building Elite? I started thinking, what do I want to do? And I was like, I don't want to go and spend 3 years. And I go, Papa, what's the fee for the college? That time it was what, 45 or something lakhs per year. वो पैसा आप मुझे दे दो. I want to start a business. 4 months after my starting business, I was doing about 35-40 lakh rupees a month. We luckily got the permission to host an event inside the Eiffel Tower. Oh, We had to insure the tower, by the way. Eiffel Tower. हमने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को इंश्योर किया था अभी. Define luxury for the common man. लग्जरी वर्ड ना बहुत अब्यूज हो चुका है. पीपल टेंड टू यूज लग्जरी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट सच्ची में लग्जरी इज Guys, welcome to another electrifying episode of the Akash Gupta Show, powered by 100 Unicorns, our new sponsor. India ke one of the top accelerators focusing on early stage startups. Backed by Venture Catalyst, a global startup accelerator. अब सभी startups के लिए एक बहुत ही काम की बात. ये अपने फंड 1 से अभी तक 145 startups में $100 million का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं. In industries like fintech, edtech, Web3 and deep tech. Some of their portfolio firms are Videoverse, Zingbus, Snapmint, TrueNative, BlueSmart, and even आपका अपना Zip Electric. And now they are on to their second fund, where they are looking to invest $200 million in 200 startups this time in sectors like D2C, agritech, SaaS, and fintech. So if you are a startup and you're looking for funding, then you know who to reach out. Awesome. तो यार आज स्टूडियो में ना पता नहीं कौन आया, मुझे ऐसा लग रहा है बादशाह आया है. That's how I joke with this friend of mine always. We have Badshah in the house. size wise I believe, but he's also now become quite Yeah. You are Puraskar, by the way. Puraskar runs the elitist magazine of the country, which is by the name Elite. And I am, elated today that we have an elite guest on the Akash Gupta Show. Gosh, it was very nice to have you here, and I can see your beautiful office. You're doing amazing work. God bless you for that. Thank you, buddy. Thank you so much. Thank you for having me. अरे it's our honor and pleasure to have you here. तो आज पुरस्कार थोड़ा बहुत आपकी ज़िंदगी के बारे में समझेंगे, लग्जरी के बारे में समझेंगे, and we'd love to also dive into the magazine business and what all is happening in the content space, right? So your elite mind, we'll try to pick some brains today, right? I hope I'm able to help. Great, man. So define luxury for the common man. लग्जरी वर्ड ना आई थिंक बहुत अब्यूज हो चुका है. आई बी वेरी ऑनेस्ट, पीपल टेंड टू यूज लग्जरी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बट सच्ची में लग्जरी इज हु यू रियली आर. मुझे बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या चीज़ लेनी चाहिए, क्या चीज़ पहननी चाहिए, क्या. मैं कहता हूँ जो आपको पसंद है और जो आपको अच्छा लगता है कि उस पर मैं थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे वो चीज़ पानी है या मुझे अच्छी लगती है. आप फूल की दुकान पे गए, आपने 4 रंग के फूल देखे, उसने कहा सर लाल वाला 10 रुपये का है, नीले वाला 15 रुपये का है, हरा वाला और एनीवे यू कैन गेट दी आइडिया. सर ये वाला पर्पल वाला 20 रुपये का है, और ये और आपको कहते हैं यार मुझे अब टेक्निकली चारों फूल हैं. आप बोलो कि सब में अच्छी खुशबू भी है, दिखने में भी सब सुंदर हैं. ये तो नहीं है कि सुंदर नहीं है, सबकी अपनी, दे आर ऑल सो प्रिटी. मतलब देखने में सबकी उसकी क्या अजूबा है दुनिया का, जो इनके रंग और स्वभाव हर चीज़ अच्छी है. तो आप बोलो कि लाल पीले से ज़्यादा सुंदर नहीं, बट आपको क्या पसंद है. क्या आप कंफर्टेबल हो कि वो 10 रुपये के गुलाब की जगह 15 रुपये का पर्पल वाला फ्लावर या 20 रुपये का येलो वाला फ्लावर, इट इज़ टू यू. और अगर उस टाइम पे आप उस 10 रुपये की जगह 20 रुपये खर्च करने के लिए रेडी हो, वो लग्जरी है. सबसे बड़ी बात है कि आपको उसमें देने में बुरा नहीं लगा. सो दैट इज द फॉर्म ऑफ लग्जरी. हालांकि तुमने 10-20 रुपए में बात कर दी, बट लग्जरी इज लाइक हर मौका. किसी के 10 रुपये भी बहुत ज़्यादा है. आप उस टाइम पे आप देखो, जो आप 14 साल या 15 साल का बच्चा है, किसी लड़की को पहली बार गुलाब या फूल देने जा रहा है, उसके पॉकेट मनी से वो फ्लावर एक बुके उसको लगेगा 10 रुपये का, तो 500 रुपये लगने हैं. और लेकिन वो 500 से 800 उसका जो प्यार, 800-300 रुपये खर्च करना, दैट इज़ टू हिम, ही फील्स मोर लाइक, दैट इज़ द फैक्ट ऑफ लग्जरी. वॉट यू ट्रूली लाइक. लोग भूल जाते हैं कि हमें तो ये ब्रांड है, ये नहीं. आपको किस चीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा खर्च करने के लिए
कंफर्टेबल फील होता है कि नहीं यार ये तो यही पाना है मुझे, यही चाहिए. सो दैट इज लग्जरी. Which is your favorite luxury brand? Brands. I'm sure you have experienced a lot more. I don't know. The most luxury item. दो चीजें बताना. Your favorite luxury brand and the most luxury thing that I can see on you today. Nothing is. So clothes are, doesn't matter. I love your shoes, by the way. Thank you. Shoes are like something I love. So when I look at something which I want to acquire, it doesn't matter what brand it is. It could be a regular brand or a very high-end brand. If I can afford it and I can buy it, I would want to acquire it because it maybe showcases my persona. When I'm dressing up, maybe today when I was dressing up, I said, I want to have a little bit of color. I'm trying something red on me with black on me. It doesn't matter what brand it is. It should go. That is my mood today. I have that thing. So my watch is going long. It has colors. So it doesn't matter what brand. But thing is, brand हर किसी के लिए अलग है. To me, very honestly speaking, Hermes is a brand which I really resonate to. Which one? Hermes. So that is a brand I very much resonate to because of certain things I like in the brand. But brands, these things keep on changing. They keep changing, no doubt about as it. you age. The season, and for you also things change, right? Nice. So how come you came about building this business Elite? उसके बारे में just tell us a bit. How you started, how you got into the Elite 1% audience magazine and stuff. थोड़ा सा Elite के बारे में बताओ. So Elite was actually our third publication. It was not our first magazine. I was in college. I was 21. I was supposed to go to London for my higher studies like my brother. So कॉलेज की छुट्टियों के बाद जब अप्रैल में कॉलेज एक्चुअली मार्च में कॉलेज ख़त्म हो जाता है और सितंबर में नेक्स्ट सेशन शुरू होता है. सो कुछ महीने थे और वो कुछ महीने हम घर पे थे. क्या होता है, आदत नहीं है रोज़ बैठने की. आप बचपन से यूर आउट ऑलवेज. स्कूल है, कॉलेज है, सुबह गए शाम को आए. और कॉलेज में तो थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम हो जाती थी. शाम को ही आते थे 5 बजे, थोड़ा 2-3 बजे तो कॉलेज होता था. देन वील चिल आउट, वील हैव अ मैगी और द स्टैंडर्ड ऑफ कॉलेज लाइफ. तो यूर कमिंग एट होम एंड देन एवरीथिंग स्टॉप्स अचानक से. देन यूर सिटिंग एट होम एंड यूर क्लीनिंग योर रूम, देयर इज नथिंग मच एंड यूर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सेशन टू स्टार्ट. And during that time, I was, my brother was, had just gotten married and, we were going to somebody's very nice, and luckily, thanks to my parents, we've had a good lifestyle. We've had a good, I was exposed to the right kind of people, to right kind of things, maybe brands, traveled a lot. So, I think that is to do with my parents and, they had the little bit. हाँ, उनके पास थोड़ा था कि वो हमें दिखा सके. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत लोगों का नहीं होता. एंड उसके लिए मैं थैंकफुल हूँ कि उनकी और देयर स्टार्स वर्कड फॉर देम. उस टाइम पे उनकी मेहनत उनकी काम आई और उन्होंने अपने बच्चों को वो चीज़ दिखा पाई जो उन्होंने देखा. और उनको हर किसी का एस्पिरेशन यही होता है. सो उसके दौरान वी वर एट समबडीज हाउस and we had good cars. We had all the top end cars and everything. So there was nothing, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, भगवान touch wood. But क्या होता है ना, there's never enough. Let's be very honest. I went to somebody's house and there was a beautiful CLS parked. It was the latest edition of Mercedes. 2007 के आसपास आई थी, 2008 पे. And the shape of this car was very, and I was really into cars. For me, cars, I was always as a child, because मेरे नाम में शायद कार है एंड में पुरस्कार. So I was always into cars a lot, and I saw this beautiful white CLS with red interiors parked in his driveway. And the moment I went to his house, I was like, party बाद में चल रही है, I want to go and check out the car. So I asked uncle, can you please, give me the keys? I want to go and take a round in it. So उन्होंने चाबी दी. I took a round around, the colony and everything. I got back. I was, my star-filled eyes and everything. And my dad knew I'm excited about the car and all that stuff. So the moment we left the party after the evening, तो मैंने डैड को ऐसे ही बोला, पापा यार वो गाड़ी दिला दो, बहुत सुंदर कार है, आई वांट टू हैव दैट कार. कहते तुम्हारे है ना, यू हैव अ मर्सिडीज. तुम कहाँ लोगे, कुछ भी नहीं होता. अब तुम तो कॉलेज में मर्सिडीज में जाते हो, तो यू आर डैम लकी. सो यू कांट कम टू मी एंड से कि जाके 1 करोड़ की गाड़ी और उठा के ले. द एक्सपेंसिव कार दैट पॉइंट इन टाइम. सो ही इज लाइक, मैंने कहा डैड डन. तो कहते हैं हु स्टॉपिंग यू. His first answer was, who's stopping you? So I thought, he's allowing me. मैंने कहा, okay, then पैसे दो with a check. And कहते मैं नहीं दे रहा, तुम्हें लेनी है जाके ले लो, कोई मना नहीं कर रहा. Go and buy it. Who's stopping you? So मैंने कहा, but I don't have the money. कहते that is your problem. How old were you? Money. I was 21.
So my dad was like, you don't have the money, that is your problem. आपको गाड़ी खरीदनी है, गॉड ब्लेस यू, आप जाके खरीद लो, बट पैसा नहीं है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है वो तुम्हारी प्रॉब्लम है. So that was the thing when I started thinking, how do I solve this problem? Because I want to acquire that car. So उसके लिए क्या करना पड़ेगा? So 3 months or 4 months of free, and I started braining, what, I want to work. I don't want to waste next 3 years of my life more कि मैं जाऊँ, MBA करूँ, ये करूँ, and then start. I was like, what, I've done enough studies. I want to start now. And that was something which I knew. अच्छा 21 साल में. 21 साल. और पापा का क्या business था, if you can share? So my dad, so he was a large contractor for Indian Railways. Electrical works, सारी आपकी राष्ट्रपति भवन से लेके all electrical works he has done to all the bhavans and. Good big business. Yes, he was touched it very nice. And then Indian Railways electrical systems he used to manufacture. So got a lot of contracting. He was the one who got intercoms to India. So most of these intercom systems within all the major offices, the red line intercoms and everything, secure lines, was tail lamps and headlamps, security features for the railways he used to do. So very different business altogether. Back to 21. 21. So उन्होंने कहा कि you think. So I started thinking, what do I want to do? And I was like, I don't want to go and spend 3 years. So we used to go to club for Tambola. So I was sitting in the Tambola, Baba, how much is my fees for the the college? That time it was what, 45 or something lakhs per year. कौन से कॉलेज में थे तुम? This was, I think, was Leeds. अच्छा. No, I've not gone. I was applying for it, and I think I had gotten through and certain. एक Bournemouth में था, एक Leeds में था. Similar to my brother. My brother had also gone to Leeds. So मैंने कहा, Papa, what's the fee? So he's like about 40 odd some lakhs. So मैंने कहा, can you give me that money? वो पैसा मुझे दे दो. I want to start a business. He's like, but what business? मैंने कहा, वो मैं सोच रहा हूँ. अभी आप बताओ कि आप मुझे वो सीट दे दो, एंड फर्स्ट थिंग क्या होगा, मैं अगले साल चले जाऊंगा. 1 साल, गिव मी 1 year, एंड दैट मनी फॉर दैट 1 year आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस. एंड again, hats off to my father, and he trusted me, and without asking any questions, without saying something, or and I still remember that was a phase where my dad also had a lot of losses in his business. There was somebody who frauded him for a lot of large amount of money. So I still remember, I said, Nita, we were tight on fund, though there were a lot of, but still, I remember he had exited out of 1 or 2 properties of his. So I remember he was, stressed on that account. But he's like, okay, no, you didn't ask me a question. When you're stressed, it's a different thing. Money works differently for you when you're a little stressed. It's not about good or times होते हैं उसमें. But he never asked me a question, never doubted. He's like, okay. Next morning, we went to the bank. उन्होंने मेरा एक account proprietorship company खोली मेरी. He's like, and he transferred the 40 lakhs. Amazing. Into my account. I think 2-3 दिन लगे होंगे, हफ्ता लगा होगा. So the money came to my account, and he's like, there you go. 1 year you have. अगर नहीं हुआ तो next year MBA. You're going and finishing your education, because he was always about. Yeah, but let me say that when you went to ask your dad for the Mercedes, he said sorry, go on yourself. But when you went for him to say ki I need money to start a business, he didn't blink an eye. Yeah. That's the amazing change that your father had, which is why you built. So that's a great lesson, I think, for every parent, कि भाई लग्जरी के लिए पैसे मत दो या उड़ाने के लिए मत दो, बट धंधा स्टार्ट करना है तो दे दो. So वो एक मौका चाहिए होता है. देखो, आपको प्रूफ करने के लिए भी मौका चाहिए होता है. एंड अगेन उस मामले में अगर देखा जाए तो वी वर वेरी लकी. I was very lucky. You can say my angel investor was your dad, which is amazing. तो 40 लाख आ गए. अब बताओ. 40 लाख आ गए. एंड 21 साल का उम्र है. I have to understand, I'm a kid at the end of the day. And so first thing I did was go and make a beautiful office. I went and I did a बहुत क्लासी ऑफिस चाहिए था मुझे. I got a very beautiful office. I got an interior designer. मैंने कहा मुझे पूरा ऑफिस चाहिए. I got a PA and I had intercom. एक intercom सिस्टम होता था कॉल का, बड़ा अच्छा. I remember टेबल पे डेस्क पे रखा, मुझे बड़ा अच्छा लगता था. I got a very amazing boss chair, a swivel chair with leather and everything. It was actually a very good chair. I kind of miss it even now.
So I got a very cool chair and I spent a lot of money on that chair. I think 45,000-50,000 की. What are you saying? हमारी अभी 15,000 वाली है यार, हमने ड्रॉप कर दी, हमने कहा नहीं खर्चेंगे. And I'm talking about what 15 years ago. So that time it was a big amount of money to spend, you know. उस time iPhone 30-35,000 पे का आता था. So you should understand it was a very expensive chair to buy, and I bought that big chair and office ready. I had a PA also. I hired one, and मैंने डैड को फिर 1-1.5 महीने बाद जब ready हो गया, I called him, and my dad came to meet me in the office. मैं कहा, Dad, this is my office. कंपनी का नाम रख लिया, सब रख लिया. एंड ही केम, ही सॉ, बहुत अच्छा है, गुड, वेरी नाइस इंटीरियर्स, वेरी नाइस. वो लाइक कर क्या रहे हो? एंड मैंने कहा, डैड अभी सोच रहे हैं. Come on. सेटअप रेडी है, मतलब I'm ready to blast, but I don't know where and when. मैं भी सोच रहा हूँ, 2-3 ऑप्शन हैं. कॉस्मेटिक्स भी सोच रहे हैं. मैं ये मैं कुछ इंपोर्ट सोच रहा हूँ चाइना से करने का. मैंने इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस ले लिया. आई एम थिंकिंग, एंड आई वाज वर्किंग एट बोक्स, आई वाज स्टडीइंग, एंड इज लाइक, अभी मतलब यू नॉट थॉट ऑफ करना क्या है, अभी ये क्या कर रही है, अभी ये तुम. मैं कह रही हूँ, वी आर वर्किंग ऑन इट. मतलब, and honestly speaking, out of 40 lakhs, I had that time spent somewhere around 28-29 lakhs on interiors. Seat check. ये होता है स्टार्टअप. And मेरे अकाउंट में तकरीबन 1.5 महीने का रन ओवर हो जाता था रेंटल निकालने के बाद. छोटी मोटी सैलरीज थी, ऑल दैट देने के बाद. एंड इट काइंड ऑफ स्टार्टेड. वो टाइम आ गया, सितंबर का टाइम आ चुका था. And it kind of like, I have to do something, तो गालियाँ पड़ेंगी. Shit comes on the air now, yeah. So I was stressed out for a few days. मैं अपने घर रूम में था, and I was cleaning my room. And because I was into auto a lot, मैं जब कॉलेज मेरा शुरू हुआ था तो एक मैगजीन थी ऑटो एक्स. एक नॉर्मल मैगजीन आती थी जिसपे 10 रुपए की मैगजीन थी, जिसपे मल्टीपल कार की फोटो होती थी जो सेल पे हैं. एंड आई टू लाइक लुकिंग अबाउट ये कार कितने की है, कितने में बिक रही है, डीलर्स की एड्स होती थी. और उसमें आप देख सकते हो ये कार इतने की बिक रही है, इतने की आ रही है. आई यूज्ड टू नॉट ट्रेड मच, बट आई यूज्ड टू एंजॉय कि ये वाली कार इतने की हो, अच्छा इसका इतना रेट डाउन हो गया, अप हो गया. सो एवरी मंथ आई यूज्ड टू बाय. Luckily, the first issue of the magazine was kept in front of me, and the latest issue of the magazine was also in front of me. Okay. मैंने देखा 3 साल में, जब ये कॉलेज शुरू हुआ था, 10 रुपए की मैगजीन थी, और आज मेरे सामने 100 रुपए की मैगजीन है. वो इतनी पतली सी, बहुत गंदी सी क्वालिटी की प्रोडक्ट थी, और ये इतनी फैट, मोटी भरी हुई एड से, shiny, very cool looking car, features and all that stuff. It's no longer that that classified ads. True. Very much classy and all that stuff. मैंने कहा अगर ये यहाँ से यहाँ 3 साल में पहुँच गए हैं तो कुछ तो है. So I went ahead and next morning went to the back page, saw the thing. मेरे को I called a person कि सर मुझे एक ad देनी है इसके अंदर, आप प्लीज़ आ जाइए. So next morning the beautiful nice sales executive comes to my home and like सर बताएं, and he told me कि सर ये ad है. Negotiated with him. तो वो करीबन 80,000 रुपए की ad पे लास्ट रुका. He started with 2 lakhs. 80,000 रुपए की सर एक पेज की ad है. So thank you so much. He went, I started counting. Ads कितनी हैं इसके अंदर, देखते हैं. So we realized there were almost about 30-40 ads. मैंने कहा not bad. अब देखते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आती है. तो I called the printing, जो नाम लिखा होता है, इंडियन लॉ है इसकी, नाम लिखना पड़ता है कि प्रिंट कौन कर रहा है. तो I called इंडियन प्रिंटो पैक करके कंपनी थी, IPP. So I called IPP. मैंने कहा ये मैगजीन आप बनाते हो, मैं भी ऐसे बनाने का सोच रहा हूँ, क्या कॉस्ट आती है, कितनी क्वांटिटी है, ये है वो है. ही सर यार 20,000 क्वांटिटी बनती है, ये है वो. उसने मुझे कॉस्टिंग बता के दी. आई डिड द मैथ्स. मैंने कहा नॉट बैड. ऑफिस खर्चे निकाल लेते हैं, डिजाइनिंग निकाल लेते हैं. दिस इज नॉट अ बैड मार्जिन तो है. अब बचा काम कैसे करना है. टू स्टार्ट विद, सो आई डिसाइडेड आई वांट टू डू अ मैगजीन. अच्छा. सो आई वेंट टू टेल मी कि हम एक पब्लिकेशन में मैगजीन में जाऊंगा. ही लाइक कौन सी मैगजीन है, किस उसमें. मैंने कहा वो सोच रहा हूँ, बट आई नो कि आई एम गोना गो फॉर अ मैगजीन, आई वांट टू ट्राई इट आउट. नाइस.
One thing, again, I will say what my dad always taught me, which has always really worked for me a lot, Okay. is the top-bottom approach. This is something very important for a lot of people out there to learn that you know, when you're approaching someone, first of all, rule number one is that everybody is approachable. There is not a single human being on this planet. If you want to reach out to Donald Trump, if you want to reach out to Narendra Modi, you should have a subject and a reason to reach out to them. But technically, nobody is impossible to reach in the open world. I mean, हाँ, लोग डर जाते हैं, अरे मुझे मिलना है, मैं कैसे करूँगा? नहीं everybody is approachable. You should have an agenda, and the right kind of agenda. You know, who that person might also be interested in. Something you need to understand that, you know, you have something valuable to provide. You know, in that retrospect, you can reach out to anybody. It's unlock any door. Yes, nobody is impossible to reach. And second, the second most important thing that I don't think a lot of people might understand or understood, it is always go from the top to bottom, never from bottom to top. That's very important. So आप pyramid में ना नीचे से मत start करो. Try to reach to the top. कुछ नहीं चाहता. वर्सेस से क्या होगा? ऊपर से नीचे आ जाएगा, उससे नीचे आ जाएगा. So this is the thing. It's like always go to top to bottom. So and it is a fact. आप आपने किसी बॉस को फोन किया एग्जाम्पल और उसने अपने पीए को बोल दिया, उसको पीए को बॉस ने कमांड दिया कि सर इससे बात कर लो. So people treat you सर का आया कि उनसे बात करनी है. Not the other way around. Not the पीए की सर आप उससे बात कर लो. No, it's top to bottom approach. So CNA was a distribution company, the largest distributing company in India for you know, publications. India Today, everybody. Central News Agency, almost 150-year-old company. सबसे बड़ा distribution house CNA होता था. So I picked up the directory. I flipped the pages. CNA का नंबर था, बेसिक नंबर. I called on their landline. तो landline होती थी. Called on landline. I knew the owner of the company, and I picked the call and I want to talk to him. And in a second, it got transferred. Seriously, no check. No check. पुरानी कंपनी है, होता है, and your luck हो जाता है. Luck, absolutely. And maybe your voice had that sharpness. So Deepak ji, I spoke to him recently also after so many years. Just, you know, on our 10th anniversary of Elite, I wanted to invite him. So Deepak ji ko सीधा call, and Deepak ji called up, picked up, and I was like, sir, I want to start a magazine. My name is this, and मेरे को ये idea, मुझे आपसे आके एक meeting चाहिए कि आप मुझे बताओ how do I do this. His first question, Beta, how old are you? And I was like, I am currently 21, and yeah, I want to give, if you can give me 1 hour of your time, I'll be very appreciative. So he's like, ठीक है बेटा, कल come at 4 o'clock to my office. How old was he? He was almost, I think, 55, 56. He was going through a very serious medical condition that time. He's not that well. Thank God everything went well. He's nice, healthy today. And yeah, he was going through a stressful time himself. But very kind man, very kind. He, you know, helped me from there till there, honestly. And just for that one phone call. उसी ने help करी मुझे, एक phone call ने. So he called me कि मैं उनके ऑफिस गया. He sat me down. He like, बेटा बहुत मेहनत वाला बिजनेस है, थक जाओगे तो सोच लो, इसी में आना है, कुछ और कर लो. मैं कहा नहीं, आई वांट टू स्टार्ट. कहते बहुत भागा दौड़ी है ये आसान मीडिया बिजनेस, मतलब अच्छे से अच्छी बड़ी से बड़ी कंपनियों को ख़त्म कर देता है, और इतना पैसा चाहिए कि आप सोच नहीं सकते, और पैसा है तुम्हारे पास. एंड था तो नहीं 12 लाख खत्म होने वाले थे. सो मैंने कहा हाँ पैसा है, कोई टेंशन नहीं है, पैसा है, आप बस बताओ करना कैसे. तो इस लाइक ठीक है, मैं एक बंदा दे रहा हूँ, वो आपको रजिस्ट्रेशन करा देगा. पब्लिकेशन की लीगल रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट से आपको ना प्रॉपर नाम वाम रजिस्टर करना पड़ता है. कहते हैं वो बंदा है, बिश जी थे, मिलेंगे आपको, रजिस्ट्रेशन करा देंगे, और जब रेडी हो जाओ तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा काम है, हाँ बस अपना तैयारी वारी कर लो, प्रिंट करके यहाँ सामान रख देना. अच्छा, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट कैसे करनी है वो मेरा काम है. वो पहली तुम्हारी मैगजीन मैं डिस्ट्रीब्यूट करा दूंगा. लवली. वो मेरा है. हम 40% वो लेते हैं अपना कट एंड रेट कार्ड का, तो रेट कार्ड से अपने हिसाब से देख लेना. एंड पहला मेरे उस पे, उसके बाद तुम्हारा है. अच्छा. सो एंड आई वाज लाइक thank you. I got the opening that I'll get the first entry, and on the same day of India Day. So Friday को आता था, Friday को ही हमारा same उसमें, क्योंकि सारे डिस्ट्रीब्यूटर उस दिन
कलेक्शन करने के लिए आते थे सबसे ज्यादा। तो ही लाइक कि उसी दिन सब आते हैं और यहाँ पे आते हैं, तो आपके उसी दिन हम आपकी को वहाँ पे लॉन्च करवा देंगे। सो ठीक है, सो आई वेंट अहेड एंड आई सेड आई वांट टू स्टार्ट, so that was the entry. We went ahead and started. Thing was, क्या करें, ऑटो करें, करें. I saw there was nothing in real estate, so I wanted to start not something which is already existing. We saw that हर चीज सी फैशन था, सब लोग उसी तरीके से जा रहे थे और फेल इसलिए हो रहे थे बिकॉज वो सब कॉमन चीजें कर रहे थे. We saw an industry which nobody was trying to tap. One was interior decor. Okay. There was very niche, and one was real estate. So ये दो टॉपिक को लेके I started a publication. A publication was Home Deco, which he sold off after 2 years. Wow. And the other was Property, which was one of the largest publications in the country in real estate. Wow. Which really got us the footprint in the media industry. So Property was two publications. And हमने साथ जोड़ के एक साथ देनी शुरू करी थी. Property Home Deco साथ जाती, बाद में भी split it. अच्छा. कि आपको घर भी खरीदना है और इंटीरियर भी कराने साथ करके उस तरीके से we used to sell it back to back. Okay. And then we made it into two separate individual publications. Nice. And 50 rupees की हमने start करी थी publication. And पहला issue हमने उसका निकाला. Come to Elite. How that happened and why? So Property grew to a very big magazine. Home Deco we sold. Within about 3 years, we were one of the largest grossing magazines after India Today in the country. What are you saying? Really? Yes. So हमारा उस टाइम पे कवर के लिए, बैक पेज के लिए लड़ाइयाँ चलती थी. साल की 2 साल की बुकिंग होती थी. एंड आवर रेट्स वर अबाउट 7 lakhs 8 lakh रुपीज फॉर बैक पेज. एंड लोग साल की बुक करते. पैसे बन रहे थे खूब. हाँ. You're making profits. We were at when I was, I think, 4 months after my starting business, I was doing about 35-40 lakh rupees a month. Amazing. 4 months. In 4 months, yes. With 12 lakh, that was the capital in a way left with you. That's when you started. Funded it all, got to 40 lakhs in 4 months. फर्स्ट इशू के हमें प्रिंटिंग का कॉस्ट ज़्यादा था, बट हमें 1 महीने का क्रेडिट मिल गया था. सो हमें 1 महीने का क्रेडिट प्रिंटर ने दिया था, तो मैंने कहा प्रिंट तो कर ही दो. टचवुड द फर्स्ट इशू आने के बाद ही हमें फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट 10 दिन बाद मिल गई थी आम्रपाली ग्रुप से, एक रियल एस्टेट कंपनी. Yeah, it's a big group. I've heard of it. And they were advertising with us till, the whole thing went to issues. But yeah, so I don't think so there's any real estate company in India we have not worked with. And ऐसा कोई डेवलपर नहीं है जिनसे हम पर्सनली 1-on-1 काम नहीं करा हो. या बट क्या करा यार पुरस्कार? आई वांट टू नो कि क्या काम किया. 4 महीने पहले यू वर काइंड ऑफ क्लूलेस. 28 लाख रुपए का ऑफिस बना लिया तुमने एंड यू डिडंट नो. 4 महीने बाद ये पुरस्कार ने धंधा कैसे सीखा, प्रॉफिट कैसे बनाना शुरू कर दिया? व्हाट वर्कड इन यू एट दैट टाइम? सर क्या चीज़ नहीं थी. यू टू ऑलवेज लुक एट द मार्केट. जब मैं न्यूज स्टैंड्स पे गया था पहली बार, सब मैगजीन्स पड़ी थी. फैशन है, ये है, और भरी 4 टाइप की, एक टाइप के 4 वो हैं, सब सेलिब्रिटीज. ये एक्ट्रेस है, वो एक्टर है, ये है, वो है. बहुत सारी आती थी उसमें. हाँ, कार मैगजीन सारी सेम. किसी में लैम्बोर्गिनी बनी, किसी में मासेराटी बनी है, किसी में मैक्लेन बनी है. सो एवरीबडी वाज डूइंग व्हाट एवरीबडी वाज डूइंग. भेड़ चाल जैसे कहते हैं. द ओनली थिंग वी सॉ कि एंड रियल एस्टेट उस टाइम पे बूम पे था. आप एक न्यूज़पेपर खोल के देखो, रियल एस्टेट की ऐड भरी होती थी. आज का तो कुछ भी नहीं है. लोग आज गुड़गांव रियल एस्टेट की बात करते हैं. आप 2010 के आसपास देखते थे तो न्यूज़पेपर के 5-7 में एडिशन आते थे. ठीक है, अलग नहीं होता. एक जैकेट, एक और जैकेट, उसके ऊपर एक और. आई रिमेंबर मैन, 4 जैकेट्स. या हमारा टीम का सुबह काम होता था कि सर सुबह सारे न्यूज़पेपर मंगवाओ, लिखो कितनी एड्स हैं, किस की एड्स आई हैं, एक शीट पे नाम लिख के बताओ, और मुझे जब तक मैं ऑफिस आऊँगा मेरे टेबल पे होना चाहिए. एवरेज 200-210 एड्स. आई एम टॉकिंग अबाउट मेजर एड, नॉट क्लासिफाइड. अच्छा. 180 से 210, 220 एड्स डेली न्यूज़पेपर में आती थी. और एक कंपनी नहीं थी, 100 कंपनियां थी. वी वर गोइंग थ्रू अ बूम. एंड हर कोई अपना नया प्रोजेक्ट कर रहा है. कोई गोल्ड प्रोजेक्ट कर रहा है तो ये कर रहा है. एंड दे ऑल वांटेड कस्टमर्स. एंड देयर वाज नो सच मैगजीन व्हिच वाज ट्राइंग टू पोजीशन दैट. पब्लिकेशन व्हिच वाज एजुकेटिंग. लोन कैसे लेते हैं,
आपको पेपर वर्क कैसे करना है, आपके राइट्स क्या हैं, नो योर बिल्डर, हमारा एक बड़ा एक सेक्शन होता था, बहुत चलता था, नो योर बिल्डर, लोन प्रोसेस कैस टाइप की, सबवेंशन स्कीम लेनी चाहिए या लैप लेना चाहिए, इंटरेस्ट रेट कैसे मैनेजमेंट करते हैं. आवर राइटर्स यूज्ड टू वर्क ऑन ब्रेकिंग, एजुकेटिंग द कस्टमर. पॉडकास्ट नहीं होते थे सर. हाँ आई नो, कुछ भी नहीं था उस समय तो, कंटेंट के लेवल में एजुकेशन कुछ नहीं था. और क्या हुआ था कि यंग बच्चे बहुत, so who was buying properties that time? Property was not that expensive like this. 30-40 लाख, 20-25 लाख से लेके 1 करोड़ में बहुत सी प्रॉपर्टी मिलती थी. वो लोग थे जो छोटे शहरों से बड़े शहर आए हैं. उन्होंने पहले पेरेंट्स ने उनको पढ़ा के बड़ा किया है, उनको जॉब मिली है, 30-40-50 हज़ार की जॉब है, हस्बैंड वाइफ दोनों कर रहे हैं, उनको आराम से लोन मिल जाता था. उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट यही थी. करेक्ट. प्रॉपर्टी तो रोटी कपड़ा मकान चाहिए. 100 चीज़ें, ये रोटी कपड़ा मकान भी हमने कैंपेन बनाया था एक अच्छे builder के लिए, Supertech. That was also one of our campaigns we had worked with them with. Very nice campaign. But leaving that aside, see, वही वाली बात है. आप गाड़ी मैं आज भी बोलता हूँ, लॉट ऑफ लेस ऑफ कंटेंट. द मार्केट्स हैव चेंज्ड. आप एक फोन खरीदने जाएंगे, आपको 100 कंटेंट मिल जाएगा कि ये फोन ये कौन सा है, स्क्रैच टेस्ट, ये टेस्ट, ब्रेक टेस्ट, थ्रो टेस्ट. प्रॉपर्टी खरीदने जाए, क्या इन्फॉर्मेशन है? इट्स ऑल जस्ट दैट एड. इन्फॉर्मेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है. एग्जैक्टली. एंड वो वाली आज जो इंसान गांव से यहाँ आया है, उसने नौकरी करी है, उसको 40-50 हज़ार मिलता है, उसको लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है. ही वांट्स टू एजुकेट हिमसेल्फ. So you found a good niche. Yes. And that's where you worked very deeply, and then you powered that niche with your execution. Yes. That's what worked, right? And Elite is in a way now, while property still exists. It was there till COVID. We pushed it off COVID because markets have changed, industries have changed, advertisement styles have changed. So lead generation change हो गई है, अब digital काफ़ी हो गया, advertisement style. So we were not making that kind of revenue, and we decided Elite was going in a much larger way. So we decided to put it on a hold. We are thinking of doing something different with tech based, but abhi I feel the real estate right now is in a very we are very close with real estate till even today. And जिनको advertise करते हैं Elite में advertise कर ही लेते हैं. हम वैसे ही luxury करते हैं आजकल. real estate सस्ता तो रहा नहीं है. So but we feel that we have something we can offer even today to the customer जो हमारे works में है. We're working on that. And Elite caters to what audience? So as I said, property became one of the biggest. Home Decor हमने बेच दी. Home Decor was also one of the largest interior decor magazines, and we sold it at a good age. We got the boost of investing, and we got some good capital in hand after 2 years. Sold it. Yes. To whom? I can't tell you that, but कितने रुपए बने? अच्छा कमाया था. So I still feel that I shouldn't have sold it, but वो हमेशा लगता है. हाँ, पापा हमेशा मुझे कहते थे कि बेच के पछताओ, बिना बेच के मत पछताओ. So पछताना दोनों तरफ है. That's a good one. Yeah, so बेच के पछताए. So leaving that aside, property में क्या था कि we had all the builders. Now builders क्या होता है? पैसा. Brands को चाहिए होता है पैसे वाले. So 2012, 2 साल after Audi contacted us, and they said that we want to advertise one of their cars for your magazines. And that call I took. My team was like, Audi से call आ रहा है and Audi wants to advertise. अच्छा, interesting. मुझे फ़ोन दो, मैं बात करता हूँ. तो मीटिंग हुई and I went for that meeting myself. The lady who was looking at advertising met me, like ये तो बच्चा है यार, ये तो ये कौन है, like founder है कंपनी का. So I went and she saw and everything and she's like, okay fine, let's try. 2 ad, 3 महीने की, 1 क्वार्टर का हम आपको ad रिलीज करते हैं. They gave us a stunning ad of an R8. Very cool, beautiful, एक silver color की R8 की एक बड़ी classy ad है. And I was like, इसको यहाँ अच्छी जगह place करेंगे, but we didn't have space. Everything was sold out. In property. In magazine, we were like, we're an 80-page magazine. We were a monthly magazine. हम भानों से हमारे 12 इशू की जगह हम 20 इशू करते थे साल के. दिवाली इशू स्पेशल, नवरात्रा स्पेशल, क्योंकि ऐड भरनी होती थी. अब कुछ ना कोई मसाला डालने के लिए कुछ स्पेशल कर दिया. क्लाइंट है, वी कांट से नो. अब उसको पोजीशन अच्छी देनी है. लेकिन ऑडी इज पेइंग अस
very limited amount of money in comparison to some. So if I give them a prominent space, they wanted back page, I couldn't give them back page. They wanted inside back. Now I was already achieving a good revenue for that inside back. Page के revenue होता है, तो मैं अगर उनको वहाँ दे दूंगा तो मैं कैसे कमाऊंगा? But I want Audi to be कि लोगों को लगे देखो Audi started advertising, एक इज्जत की बात है. So हमने 3 इशू के लिए अपने किसी क्लाइंट को हमने कुछ और ऑफर करा, वो बैक एंट्री पेज हमने Audi को दे दिया एंड आई वाज सुपर हैप्पी. Audi के 1 महीने बाद BMW कॉन्टैक्टेड अस. उन्होंने कहा सर वो करना है और आपके साथ इवेंट करना है एंड वी वांट टू डू 7 सीरीज का इवेंट विद यू. एंड हमने कहा चलो ठीक है. हमारे अंसल जी कवर पे थे, उसे सुशील अंसल जी का कवर था. हमने कहा एक कवर लॉन्च करें सुशील अंसल जी के साथ, लेट्स डू अ नाइस इवेंट. हमने रेडिसन के अंदर एक ब्यूटीफुल इवेंट किया. ऑल द रियल एस्टेट गाइस केम और आई थिंक उनकी 1-2 गाड़ियाँ बिक गई. सो दे केम टू अस कि सर आपके साथ ना साल भर का कॉन्ट्रैक्ट करना है हमें, और हमारे 2 और कंपनीज हैं उसके साथ भी आप शुरू कर दीजिए. सो विद इन अबाउट अ ईयर वी हैड ऑलमोस्ट 40 brands. Car brands. No, all luxury brands. Sure. Knocking your doors. Knocking our doors कि सर वो करना है. And there was a brand called Miele, which is one of the closest brands to us. आज 10-12 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं. They started working with us in 2013. Miele was a German kitchen appliance brand, and we started advertising with them. They started advertising with us, and they got a contract for about 1,300 crores from a real estate developer for all their apartments. So that's why they're still with us. They like us. They've been working. Because of the ad? Yes. Wow. Because they were, a big project was given to them, so they did all the appliances in that project. Large, and they met at one of our events. I got the builder and the MD introduced of the company. Siemens started advertising, Gaggenau, सारे brands. Eventually, Pog and Pole, Zematic, the kitchen brands, this and that. A lot of people you might have not even heard the brands, Correct. but all those brands started working with us, and ये शुरू हो गया. And 1 year down the line, I said, I cannot handle, because ये brands वो पैसा नहीं देते थे जो real estate देता था. So, and I had to, सबकी positioning अच्छी चाहिए, उनको color coding भी चाहिए. So, बाली की एक advertiser आया, मैं इटली से आया, बाली brand, and उनको color code match करा के दो जी कि अगर color इधर का उधर हो गया तो पैसे नहीं आएंगे. International payments आ रही हैं, time लग रहा है, credit time ज़्यादा देना पड़ता है, discounting agencies को ज़्यादा देनी पड़ती है. तो मैंने कहा यार discount, I have real estate, मैं इनको रियल एस्टेट में जगह दूंगा तो मेरी मैगजीन, आई नीड मनी. बिजनेस है, सुंदर चाहे कितना भी लगता हो, बट बिजनेस है. तो मैंने कहा इनके लिए ना अलग पब्लिकेशन बना दो. ये एक अलग कर देते हैं जो लग्जरी के ऊपर है, विच केम टू द फैक्ट ऑफ एलीट. सो एलीट वॉज अ सब थिंग की I can still keep my revenue and also keep these clients. You were smart enough, man. You're street smart, let me tell you that. Thank you. So I don't think so, but चलो. No, यार देखो, आपके खून में धंधा है. आपने देखा धंधा पूरी जिंदगी, और वो कहीं ना कहीं स्ट्रीट स्मार्टनेस वहाँ से बहुत आती है, मुझे ऐसा लगता है. Thank you. So that was the inception of Elite. March 2014, we launched the first issue of Elite magazine. And and the idea was that we only want to serve to the 0.1%. We were a niche publication. We were on stands, but never on a massive structure. Like 18,000 copies, the best of quality paper, at 300 pages. When you feel it, you feel the the richness, because one thing I always say, even with property, we were one of the finest publications, 130 GSM paper. The reason they were Realty Plus and other magazines, they could not survive in front of us, because the eye to detail is what we were good at. Nice. That's why everybody appreciated our work. We never ये एक और बहुत important बात है quality की. When I started working, the reason we successfully worked very well, because we went with the best quality. जब 12 लाख मेरे पास थे, पहले अगेन वापस आते हैं, बहुत सारी प्रिंटर्स थे जो वो मैगजीन मेरी 12 से कम में बना सकते थे. You know who I went to? Hindustan Times. Top of the food chain. Yeah. And they would have charged, and everybody like, sir क्या कर रहे हो, इतना प्रीमियम दोगे? मैंने कहा सर मेरे को प्रोडक्शन मैनेज नहीं रखना, मुझे वहाँ देखना नहीं कि प्रिंट ठीक हुआ नहीं हुआ, मैं ज़्यादा पैसे देने को रेडी हूँ. एंड आई कैन टेल यू, आज मेरे को 15 साल इंडस्ट्री में हो गए, मैंने आज तक नहीं देखा मैगजीन बनती कैसे. अच्छा, मैं नहीं किया सर, मैं पैसे देके काम कराता हूँ. वाह. आई नो मेरा प्रॉफिट कितना है.
मेरे को अपने प्रॉफिट से मतलब है। You've never seen a publication happen. क्यों मैं जाऊँ? दे रखा है मैंने, आउटसोर्स कर रखा है, मैं टॉप बंदे के साथ काम करता हूँ। काम नहीं हो तो मैं उनको कहूँगा सर दिस इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट केयर, आई एम पेइंग टॉप बक फॉर इट, यू गिव मी द बेस्ट क्वालिटी स्टफ। उसमें एक्विस कोटिंग होती है, वो क्या होती है, आई जस्ट शो देम व्हाट आई वांट, दिस इज व्हाट यू नीड टू डिलीवर, यू चार्ज मी व्हाट यू वांट। अगर वो कहते हैं कि सर ये क्वालिटी का सामान 100 रुपए का बनता है तो मुझे 200 कमाने हैं, धंधे वाली बात। मुझे 200, मेरे को 200, मेरा टारगेट है 200 नॉट 300, मेरे को 100 का 80 नहीं करना, तुम कमाओ यार, 100 का है ना, ठीक है। माई थिंग इज टू अर्न 200, माई टारगेट इज टू अर्न 200 और 250 और 300। मुझे ये नहीं करना कि मैं 50 की करूंगा और 150 कमाऊंगा, मुझे वो काम ही नहीं करना सर। आप बेस्ट से बेस्ट लाओ। So always in life, in business, remember this is my target. Don't go चिंदगिरी की इसमें वो करना है, या लोग यही पे खत्म कर जाते हैं, बिजनेस में ग्रो नहीं कर पाते या लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते, वो खर्चे ही कैलकुलेट करते रह जाते हैं। खर्चे कैलकुलेट मत करो, कमाई कैलकुलेट करो। क्या बात है, दिस चीयर्स ऑन दैट, चीयर्स द कॉफी ऑन दैट, लवली। तो यार ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिकॉज देखो थोड़ा सा आई वुड वांट टू स्ट्रेस ऑन द पॉइंट दैट यू मेड कि वन इज क्वालिटी, आई विल पे प्रीमियम एंड आई विल गेट प्रीमियम। In India, doing that is very tough, by the way. And which is why you see a mad rush of capital into so many companies, and they are trying to discount the customer. The startup world है, it's built on a lot of CAC कि यार customer का 100 रुपये का product इसको मैं दे देता हूँ आज, हो सकता है मेरा अगले महीने 100 रुपये का ले ले, आज तो मैं नहीं कमा रहा, इसको 50 में देता हूँ, 20 में देता हूँ, customer acquire कर लेता हूँ। You have thought very differently, right? कि नहीं भैया मेरा product की एक value है, मैं उस value से premium charge करूँगा, and I've gone premium. जब वो चीज़ टेबल पहुँचती थी ना, अंडरस्टैंड करो, हाउ डिड आई गेट अटेंशन व्हेन माय पब्लिकेशन रीच्ड देयर हैंड। जब वो उठाते थे तो यार दिस गाय इज नॉट डूइंग नॉनसेंस, एंड इफ आई कॉल ऑन देम आई वांट टू मीट यू, दे विल से कि यार हाँ, इट पुट मी अबव द स्टैक, इट गॉट मी राइट देयर, सो दैट्स व्हाट आई वांटेड। सेम विद कस्टमर को 50 में देखते हो ना, क्या यार ये तो मज़ा आ गया देख के। सो you to understand sometimes going the other way is the way. Yeah, absolutely. Find your niche. I think you were perfect founder market fit कहते हैं ना startup में, founder market fit. So I think you were the founder who wanted to build this luxury premium brand, and you had some of the visibility. ऐसा नहीं है सर, anything you do in life आप अच्छा काम करो, महंगा लगता है ना, टेंशन नहीं है। When we do events, आज भी हम events करते हैं, you've seen our events, you've heard of our events, we do crazy. बताओ यार इसके बारे में बताओ, because तुम्हारे events are mind blowing. I have been to a few of them, and I think क्या Statue of Liberty पे तुम ले गए दुनिया को, फिर तुम कहाँ ले गए थे? We've done Eiffel Tower, Burj, ना we've done, so Yeah. So how do you crack this, and what is this? मेरे को ना एक नो से बड़ी प्रॉब्लम है। आई डोंट लाइक नो। अगर मुझे कोई नो बोलता है तो आई हैव अ बिग इशू विद नो, एंड आई लाइक टू डू द इम्पॉसिबल, सो आई लाइक द टैग ऑफ मिस्टर इम्पॉसिबल। सो जो भी कोई चीज़ इम्पॉसिबल होती है, मुश्किल होती है, it kind of settles me and मुझे उसे अचीव करना है। So I like to work because you know my brain doesn't stop working. If I, you know, there's always a way. That's the thing. मुझे कहीं ना कहीं वो रास्ता ढूंढना है। सो हम इवेंट्स करते थे, वी यूज्ड टू डू क्लासी इवेंट्स इंडिया में, बहुत स्टाइलिश, हाई एंड, विद बेस्ट मिशन स्टार शेफ्स, दिस एंड दैट। तो वी सेड यू नो लेट्स इंटरनेशनल उस पर लेके जाते हैं प्लेटफॉर्म पे। सो वी डिड द सवॉय इन लंडन, वी डिड मरीना बे सैंड्स, द फोर सीजन्स इन सिंगापुर, you know, Swissotel, to you name the properties, raffles. We did all the top events all across, and we've been doing this in 2012, by the way. So we used to do all these beautiful events, and but एक time हो गया that you know when we did an event in 2018 at Burj Al Arab, and Burj Al Arab was, yeah, Burj Al Arab है 18 में, yeah. and we did a beautiful event, and every, you know, Rolls-Royce was a partner. Rolls-Royce had sponsored. It was a stunning event in the ballroom and all that stuff. But once that event got over, मैंने कहा अब क्या, 7-star होटल एक ही है। सुबह मैं कर चुका हूँ। प्लाजा था न्यूयॉर्क में, बट न्यूयॉर्क वाज रियली टू फार ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी। आई वाज लाइक कि न्यूयॉर्क इवेंट करना थोड़ा मुश्किल है अभी फॉर द टाइम बिंग, बट प्लाजा को छोड़ के सब इवेंट्स हम कर चुके हैं, मरीना बे सैंड्स कर लिया, हर चीज़ कर लिया, व्हाट नेक्स्ट? सो वी सेड लेट्स डू समथिंग यूनिक। वी luckily spoke to the government and got the permission to host an event inside the Eiffel Tower. Oh. So in 2019 we hosted an event inside
on top on the Eiffel Tower. And वहाँ एक रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में इवेंट नहीं किया, दैट वाज द कॉमन चीज़ है, लोगों ने देखा है. एक उनका रूम है कॉल्ड द गुस्ताव रूम, व्हिच इज द प्रेसिडेंट्स रूम, वेयर प्रेसिडेंट्स समटाइम होस्ट सम ऑफ हिज प्राइवेट फंक्शंस. एंड उस गुस्ताव रूम की हमें परमिशन कैसे ना कैसे करके निकाल ली. ये करके वो करके उनको दिखा के कि हाउ कल्चरली इम्पोर्टेंस दिस इवेंट ब्रिंग्स टू यू. दिस इज अ कल्चरली इम्पोर्टेंट इवेंट फॉर योर कंट्री, यू नो, योर रिलेशंस विद द कंट्री, आवर कंट्री, इंडियन इंपॉर्टेंट है यार आफ्टर ऑल, यू नो, और इंडियंस की इज्जत है दुनिया में बहुत ज़्यादा. सो हमें कैसे ना कैसे उनको मनू के हमने आईफिल टावर को 2019 में वी डिड वन इवेंट इनसाइड द आईफिल टावर. Elite was branded all across. We had to insure the tower, by the way. Oh, insure Yes. the tower. Yes. Eiffel Tower. And that was the biggest challenge for me. सब हो गया था. एंड उन्होंने हमें एक परमिशन हो गया, मैंने अनाउंसमेंट कर दी, सब हो गया, इवेंट हो रहा है इस टाइम पे. उन्होंने कहा कि इंश्योरेंस लानी है आपको, यू नो एक इंश्योरेंस चाहिए. टावर में हिल गया. सर इंश्योरेंस करनी है आपको, इंश्योरेंस लानी है एज अ कंपनी, यू कैन अप्लाई एंड गेट इंश्योरेंस. हमने अपने यहाँ पे बोला तो 8.5 करोड़ का कोट आ गया. Obviously, you're insuring one of the world wonders in that sense, right? I get I'm not a Ambani. I can, you know, it's your major insurance companies, बड़ी companies होती है ना, उनकी insurance policy cover हो जाता है. My company was not that big. I didn't have a crores worth of insurance policy. It was to take a small, side insurance on the Eiffel Tower. So हमें बहुत मेहनत हुई. हमने बड़ी मेहनत से किसी कंपनी से करा करू के रेलीगेयर से कराया था हमने, बड़ी मेहनत से. And I'm still hanging on my wall. I've got it framed when we had to insure the Eiffel Tower to host an event inside. My God, this is an achievement, man. कम पैसे में हो गया बहुत. बहुत तो कम नहीं बोलेंगे, बट हाँ, हमने आईफिल टावर को इंश्योर करा. We just did Statue of Liberty. हमने Statue of Liberty को इंश्योर किया था अभी. Oh my God, how do you crack this? I think same concept, knock the door. No, so actually आईफिल टावर हो गया तो हमें लगा बहुत तारीफ होंगी, लोग बहुत अच्छा लगा, बहुत लोगों ने तारीफें करी, बहुत अच्छा हुआ. बट वी वर थिंकिंग कि, यू नो, तो एक आई कैरी द बैज ऑन माई शोल्डर दैट, यू नो, आई डिड एन इवेंट इनसाइड द आईफिल टावर. 3 महीने 4 महीने ऐसी वाह रही कि आई कांट इवन टेल यू. रूम में जाओ, आपको यू आर द स्टार ऑफ द रूम. 4-5 महीने बाद एक लोग कहते हैं ठीक है कर लिया, हो गया, फ्लूक था यार, चल गया. सो मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत करी, फ्लूक नहीं था कि मुझे बस किसी ने दे दिया कि यहाँ जाओ जी आईफिल टावर में इवेंट कर लो. हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, इतनी ट्रिप्स हुई, इतना लाइजनिंग, वी हैड टू डू सो मच ऑफ ईमेलिंग बैक एंड फोर्थ एंड गवर्नमेंट से ये वो. सो मैंने कहा यार कुछ तो करना है. सो वी वर्कड एंड वी गॉट द परमिशन टू होस्ट समथिंग in London at a venue which is the most iconic venue, at the Buckingham Palace. Wow. Now 2020 we said, and we were ecstatic. We announced the event. We're doing something inside Buckingham. Never happened before, you know. But COVID hit and everything got sealed up. And सब कुछ सील वील हो गया तो अब क्या करें. So 2022 में when everything opened up, we spoke to them again. They said, sir, right now with the health of Queen and everything, there is no way, you know, anything like this, a public affair would be allowed. But we can give you a beautiful venue, which is the London Bridge. Oh, wow. So we like, London Bridge के मैं कहाँ host करूँगा, जगह कहाँ है? कहते sir, why don't you do it on top of the London Bridge? Oh. What are you saying? So, for most influential Indians, that is our IP, which is Elite Most, where we honor 50 of the most influential Indians from all around the world. We hosted that season on top of the London Bridge, honoring, and that was on the 75th Independence Day of our country. So we honored the most influential people from all around the world in London on top of the London Bridge, honoring the most influential people from all around the world. So you are in a business of creating this largestness and brand appeal, right? No, it's मतलब है linked to your business. मान लेते हैं. मुझे याद है रजत शर्मा जी was there with us on that event, and you know he was ecstatic. मतलब उनके eyes were literally, you know, full of tears. कहते यार अब, and there was a glass floor नीचे London Bridge में ना, तो नीचे London Bridge कहते यार बताओ हम यहाँ, and they sang Janagan Man right there, like, you know, in London कि हम यहाँ खड़े हैं आज. Super. ये लोग हमने चाहते हैं कि हम इनके यहाँ पे आके. What an achievement, yeah. What an achievement. And it was no doubt, it was the power, amazing. सही बात है. And I think
luxury is about a little bit of power also that you associate with, right? कि भाई you can unlock doors and the brands, that is why they associate with your business, right? कि भाई ये कुछ भी कर सकता है और ये किन हाथों में जाती है, which is the value that I provide, right? Yeah, at the end of the day, it's about the right audience. Yeah. आपकी product has to reach the right people. Your events have to speak the right thing. When you put 50 of the most influential people in one room, business तो automatically हो जाता है. Simple सी बात है. 50 top से top, we had about 17 of the 100 richest Indians at that day in that room. Who's the richest person or the most influential person according to you whom you've met? I've met a lot of people. That's why this question is more interesting for you. Luckily, thanks to my work, I literally meet a billionaire every day. So साल में मतलब our social circle is like that. So every second person I meet is a billionaire. So बहुत सीखने को कुछ मिलता है. बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग लोग, कोई तो फेमस हैं, तो कोई बहुत रिच हैं, तो कोई बहुत सीधे हैं, तो बहुत अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं. बट on a serious note, richest तो I don't think, but the most knowledgeable I might be able to, अलग अलग है, सबका एक वो है. You can't name It is I can't name one, but आप अगर ऐसे कुछ पूछना चाहते हैं अबाउट बिलियनेयर्स, हाँ वो बताओ कि क्या एक ऐसी क्वालिटी या कुछ एक दो क्वालिटीज जो आपको इन सारे अचीवर्स में, बिकॉज यू मेट सो मेनी अचीवर्स, बिलियनेयर्स, यू आर सेइंग यू आर मीटिंग अ बिलियनेयर एवरी डे, व्हाट डू यू सी 2-3 कॉमन थ्रेड्स इन देम? सी दे आर क्विक एंड आई हैव लर्नड दैट विद बीइंग देयर. यू डोंट टेक टाइम, मतलब सोचने का मौका नहीं होता, कर दो बस, बाद में देखी जाएगी. इट्स लाइक you like something, do it. Like one thing about me, like it's a fact, little funny though, but I don't stress the small things of life. I don't have time for the small things of life. A lot of people get irritated on that. मैं कहता हूँ I need to free my day. जितना random चीज़ों से मैं दूर रह सकता हूँ, मैं अपना वो random चीज़ें दूर रखता हूँ. मुझे I don't need to bother about you'll pay extra. Again ये वाली बात आती है, ज़्यादा पैसे दो, लाइफ सिंपल कर लो. लाइक इन आवर हाउस वी डोंट वॉश आवर क्लोथ्स, वी गिव इट टू ड्राई क्लीनर. मुझे मेरे कपड़े पैक प्रॉपर प्लास्टिक में से, मैं नया कपड़े खोलता हूँ रोज, मेरे को वो चाहिए. आई डोंट हैव द टाइम टू आयरन देम आउट और डू दैट. नो, पिक द पैक कि डाला बैग में निकल पड़े. यू टेक डिसीजंस क्विक. द वे आई ट्रैवल, आई एम ऑलवेज, आज मैं यहाँ हूँ, कल सुबह मैं कहीं और हूँगा, कल वापस आ जाऊँगा. इट्स लाइक you decide. If I need to go today, if somebody just calls me right now, aajo Dubai, aajo kal subah wapas, I'll fly, have a meeting and come back tomorrow morning. No questions asked. It's not like मैं सोचूंगा, decision लूंगा. Tuck. I mostly never book a flight ticket till the time I'm actually on the way to the airport. Wow. That's something very weird about me. मैं क्योंकि मेरे को पता नहीं होता, मैं पहले बुक कर लूँ और मेरे पैसे भी ज़्यादा चांसेस वहाँ होते हैं. आई 99% बुक माई टिकट व्हेन आई गेट इन द कार टुवर्ड्स गोइंग टू द एयरपोर्ट. सो मैं गाड़ी में बैठा, देन आई बुक माई टिकट कि अब दिस इज अमेजिंग, आई डिडंट नो दैट. हाँ, तो पहला ट्रेट इज फास्ट, क्विक, बीइंग फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट, डिसीजन मेकिंग क्विक होनी है आपकी. सेकेंड, यू गॉट टू बिल्ड ट्रस्ट. ट्रस्ट इज द only thing which truly matters. Trust and value. Understand, आप सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी ज़बान कितनी कीमत की है. Most thing, nothing matters. I can charge them $10 extra, and they will be happy to give me. क्योंकि मैं से आ रहा है, उनको पता है कि ये कोई नहीं. When he is done it, he is doing it stress free. They have to trust you. Even brands. They know that I am more expensive as an agency than other companies. But they say कि जुगाड़ू काम नहीं करेगा, हवा में नहीं बोलेगा, सर हो जाएगा, हुआ नहीं. No, what you say, you have to do. So there is no room for error at any given point. So your word matters. If I say this is this, this is this, there can't be no room for on that account. सबसे बड़ा ये. दूसरा, and the human side. सबसे बड़ी बात है, एवरीबडी इज ह्यूमन. यहाँ सबके वो नहीं है कि वो सब लोग वही दाल रोटी खाते हैं, सब लोगों का वो इश्यूज़ हैं, सबके वो ही हैं. सो मोस्ट ऑफ द टाइम वेर आई फील, लोग मुझे बोलते हैं कि यार दोस्त कैसे बनते हो आप ऐसे. तो आई रिमेंबर मैं लास्ट ईयर किसी कंपनी के साथ काम कर रहा था, and I was not going to Bombay that much. I'm not a Bombay person. So it was only last year I started going to Bombay that much. And हम बॉलीवुड से हमेशा दूर रहते थे, बिकॉज बॉलीवुड से ना
कोई हमारा लेना देना नहीं था। बस बॉलीवुड में मुझे लगता था कि खर्चा होता है, कभी मिलता नहीं है कुछ। इट्स अ प्लेस टू स्पेंड मनी, नॉट टू अर्न मनी। सो हम सेलिब्रिटी से बड़े दूर रहते थे। सो बट बिकॉज वी यूज टू डू दीज ग्रैंड इवेंट्स, हमने स्टैचू यहाँ पे किया, सो वी स्टार्ट डूइंग स्टैचू ऑफ लिबर्टी। अब हम म्यूजियम ऑफ फ्यूचर कर रहे हैं, वी आर डूइंग द फर्स्ट इंडियन इवेंट इनसाइड द म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। बट लंदन के बाद ना हमें तो ये टेंशन ज़्यादा नहीं मिली, तो मेरे को लगा यार ये बिलियनर्स सब जानते हैं हमारे बारे में, और राइट सर्कल्स में तो लोगों को पता है, बट ये मास में ना हमें कोई इतना ध्यान नहीं देता, बिकॉज क्या ग्लैमर नहीं है। हम वो सेलिब्रिटीज़ नहीं ला रहे, वो डांसर्स नहीं करा रहे, सिंगर्स आके गाना नहीं गा रहे। बॉलीवुड इज रिलेटेड टू दैट, या तो मासेस को ये तो बिलियनर्स को पता है, एक क्लोज ग्रुप सर्कल में, और उन लोगों को द टॉप टियर ऑफ पीपल नो अबाउट दिस थिंग्स एंड व्हाट वी आर अचीविंग एंड द वर्क वी हैव डन, बट द मासेस, एक जनरल ऑडियंस सेट को इतना नहीं पता है। और वैसे लीड मैगजीन वी 0.1% कोई सर्व करते हैं, तो हमें वो रोल्स रॉयस को फर्क भी नहीं पड़ता कि उनके या फरारी डजंट केयर अबाउट देम, सो देर व्हेन दे एडवर्टाइज विद अस दे नेवर आस्क अस टू रीच देम, एंड दे नेवर वांट, उनको फर्क नहीं पड़ता कि यार आपकी मैगजीन वो नहीं पढ़ता है, आपके बारे में वो नहीं जानता, तो उन्हें कोई मतलब नहीं है। दे वांट, उनको पता है कि दे आर रीचिंग देयर कस्टमर, द कस्टमर रीचिंग देम, दैट्स फाइन फॉर देम। सो मासेस हमारे को जरूरत नहीं थी। सो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड गोइंग टू बॉलीवुड। हमें थोड़ा मास के लिए आई फेल्ट दैट I need to start reaching a little bit to masses. We need to look at digitalization here and there a little bit. So we started working with a very big media house there, and they're doing all the Bollywood. हर रोज़ उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, ये हो रहा है रोज़ सुबह शाम। एंड मैंने कहा यार ये हमारे इवेंट पे बुलाते हैं, इन लोगों को आप कॉल कर दो। Why don't you call these people? They're like कि सर हम इनके मैनेजर को करते हैं, ये करते हैं। उनकी टीम बैठी थी, मैंने कहा मैनेजर को क्यों, टॉप डाउन ना, डायरेक्टली फ़ोन करो ना उन्हें, डायरेक्टली मैसेज कर दो उन्हें। ये उनके मैनेजर को बोलोगे, वो वहाँ तक बात जाएगी, वो वहाँ से लेयर होगी, PR को बोलोगे, डायरेक्टली मैसेज कर दो इन्हें। लाइक सर वो नंबर तो हमारे पास है नहीं ना इनके। मैंने कहा आप तो रोज़ सुबह शाम बैठते हो यार, अभी तो तुम उनके घर पे शाम को होने चाहिए। दे शुड बी योर बेस्ट फ्रेंड्स, यू आर सच अ बिग जर्नलिस्ट, यू शुड बी सिटिंग विद देम, चिलिंग विद देम, दे शुड बी ऑन योर स्पीड डायल। मतलब ये क्या है, कहते नहीं वो यार अलग होते हैं, देयर ओन लाइव्स, वी हैव आवर ओन लाइव्स। मैंने कहा आई वाज सरप्राइज, मैंने कहा हम बिल्डर आज घर के लोग हैं, देर लाइक फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट, हमारे क्लाइंट्स हमारे फ्रेंड्स बन जाते थे, वी आर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। उल्टा इवन शादी से लेके क्या आई वाज बेस्ट मैन इन हाफ ऑफ द बिल्डर्स वेडिंग। सो मैंने कहा अभी तो आप लोग बॉलीवुड में तो यू शुड हैव बीन द किंग्स। मतलब फ़ोन किया शाम को, आपको उनके पार्टी कर रही होनी चाहिए, ड्रिंक्स पे उनके साथ घूम रहे होगे, उनकी गाड़ी में घूम रहे, व्हाई आर यू डोंट इवन हैव द नंबर। मैंने कहा आई पिक्ड अप माई फ़ोन, मैंने कहा ये सबके ये नंबर करीना का है, ये इसका है, ये सैफ का है, आई लाइक ये आपको सारे नंबर मैंने एयर ड्रॉप कर दिए हैं, टेक माई नेम, हैव अ वर्ड एंड बात करिए। You had all these numbers all. I had the numbers. I never really your network have been getting anybody's number is 2 seconds job. It takes how much time? I'll just say यार इनका नंबर चाहिए, वो 2 मिनट में आ जाएगा, कोई बात नहीं है उसमें। तो मैंने कहा I gave the numbers, मैंने कहा but I'm not going to talk. I'm like go ahead and बात करो, and they're like मैं बात करिए। But then I decided, मैंने कहा यार इतने साल में, मैंने कहा so that's like मैंने 1 साल अब मैं थोड़ा बॉम्बे बिताऊंगा, and I was like कि 1 year में ना I should be one-on-one with everybody in the list. It should be that, when I call upon them, I should be on a one-on-one phone call. And that's the idea. That's why I started Bollywood thoda sa focus karte hain. But we have Karan Joshi coming this year to our event. In the Dubai event? We have Madhavan. Vivek Oberoi is a sponsor. He's sponsoring the event with his beautiful company called B&W. I remember Vivek, when I met Vivek, so meeting thi, I went to meet him Dubai mein, and he was sitting with me, and so he's like, so when I told him about my event, he's like, you want me to attend the event, you want to give me an award and stuff. मैंने कहा नहीं, I want you to sponsor. He's like, तू मुझसे पैसे मांगने आया? मैंने कहा हाँ. Yeah, so but he's now sponsoring the You could convert him also, huh? Nice. यार कुछ सिखाओ हमारे बच्चों को. I think there's a lot of youngsters who are watching this show, right? How do you want to kind of tell them how businesses are built? What's important? Early stage, 21 साल के नए लौंडे, उनको बताओ कैसे बनाना है धंधा. एक तो सपने देखना मत छोड़ो. अभी क्या है ना, हमारी जो दुनिया आजकल बना दी है ना लोगों ने, सपनों से लोगों को डर लगने लग गया है. आप देखो, मैं हाउ डिड आई स्टार्ट, एक गाड़ी के चक्कर में. सपना, आज मैं अच्छी फैंसी कार लेके घूम रहा होता हूँ ना, 4 लोग बोलते हैं अब तो ग्रीन बोल रहे हो कि यार देखो फ्यूल उड़ा रहा है, क्या है, शो ऑफ मार रहा है. मैं यार नहीं यार, 4 लोग हो गए ना जो
आई एम डूइंग मोर सर्विस दैन 500 पॉडकास्ट, सॉरी टू से नो। वो एक कार ज़्यादा काम करती है। वो एक वहाँ पे बच्चा वहाँ पे होना, एक यंग बच्चा आके फ़ोटो लेता है कि यार मुझे आपके साथ गाड़ी के साथ फ़ोटो ले लूँ, ले लो बैठ के लो, आराम से फ़ोटो लो, कोई बात नहीं है। उसके दिमाग में है कि नहीं यार मुझे ये करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है कि मैं ऐसी गाड़ी में घूम सकूँ या ये लाल गाड़ी में फ्राई घुमा सकूँ। That's motivation. That's motivation. Yes. जिंदगी में सपने देखना नहीं छोड़ना। लोग हम यहाँ पे सोसाइटी को इतना चादर से आभार मत सको, चादर में रखो, वो सब बकवास है। चादर आपकी डिपेंड करता है आपको कितने, मैंने क्या ना, खर्चे की मत सोचो, कमाने की सोचो। आपको दिस इज अ फैक्ट। सही बात है। People don't think like that. मैं स्टार्टेड जब किया था ना मैंने, दिस इज सेल्स का अगेन वाली बात आती है, मेरा सेल्स का हेड था। मैं जब फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस आई वाज अर्निंग गुड मनी, आई टोल्ड यू दैट ना। सो आई हैड द लेटेस्ट आईफोन, यू नो, आईफोन 3 आया था उस टाइम पे, आई हैड अ ब्यूटीफुल आईफोन एंड माय सेल्स हेड कि सर फ़ोन दिखाना था, बहुत प्यारा फ़ोन है, यू नो, हैड अ वेरी वाइट कलर की बैक होती थी उसकी, सब बहुत प्यारा फ़ोन है यार, लेना है यार। रियली सेम डायलॉग मैं डायड ने ले ली। सो ही इज़ लाइक कि सर कहाँ सर, मेरी सैलरी पे, सैलरी का क्यों सोच रहा है, मैंने तेरा कमीशन का स्लैब है, करेक्ट, क्या तेरे को अचीव करना है, 10 क्लाइंट तेरे को लेने इस महीने, 10 क्लाइंट आएंगे, तेरा आईफोन आ गया, क्या प्रॉब्लम है, सोच क्या रहा है, यू कैन डू इट। कैन यू बिलीव 1 महीने में ही हैड हिज फोन। Wow. Solid. Yeah, vision कर भाई, नहीं? I was amazed, उसने कर लिया because he had, कि उसका आईफोन चाहिए था। So you have to motivate your team also. It is not about that. हर चीज़ रीच में है, आप मेहनत तो करो, ट्राई तो करो, ज़्यादा से क्या होगा, फेल हो जाओगे। करो, विजन डालो बड़ा, सोचो बड़ा, है ना? कुछ नहीं जाता, ज़्यादा से क्या होगा, ठोकर आ जाएगी। सही बात। एंड अगर आपको वो वाली बात आती है ना कि अगर आपको लग रहा है अप्रोच, लोग अप्रोच करने में डर जाते हैं कि मैं फ़ोन करूं तो बात क्या करूं, कैसे होगा, मुझे मना कर देंगे। रिजेक्शन से लोग बहुत डरते हैं इस देश में। रिजेक्शन से मत डरो। एंड ये फ़नी बात है, तो बहुत फ़नी वाली सिचुएशन है। जब आई वॉज इन कॉलेज, नॉन मैरिड इन कॉलेज, हर नया सेशन आता था तो यू नो वेरी लॉट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स यूज्ड टू कम एंड यू नो होता था कि यार बात करनी है, यू नो इट्स अ वेरी प्रिटी गर्ल, आई वांट टू गो एंड टॉक टू हर। सो सब लोग सोचते थे कि यार उससे बात करनी है, वो 10 दिन सोचते थे, सब जाते थे, अच्छे स्टाइलिश होते थे, फिर जाके बात करते थे, यू नो, हेलो हाय हाय, वो बात होती थी नहीं होती थी। माई रूल वॉज द फर्स्ट डे व्हेन अ न्यू सेशन कम्स, आई विल गो एंड टॉक टू 20 गुड लुकिंग गर्ल्स। दो तो हाँ बोलेंगी और अच्छे नहीं, 20 की 20 से बात कर लो, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है। इतना कितनी किस्मत खराब होगी, 2 तो बात करेंगी, अगर 18 ने मना कर भी लिया तो क्या हो जाएगा। सही। सो इट इज लाइक दैट। अगर आपको अगर इन्वेस्टर से बात करनी है अपने कंपनी के लिए, फोन उठाओ, कर डालो, कहीं भी एक मिल गया आपको, एक किसी ने आपको दे दी, आपकी किस्मत लग गई। बिल्कुल लगे रहो, है ना, और डरो मत। सुपर। और टॉप डाउन जाओ। अमेजिंग यार। ये एक बात बताओ, लग्जरी जो है बहुत ही दूर लगती है, अरे वो कैसे मैं स्टोर के अंदर भी घुसूं, राइट? लोगों को ये डर होता है। बट मान लो अभी एक यंग बंदा है, उसको लेनी है फरारी, क्या करे वो? सर पहली बात तो घबराओ मत। आप वो आपने बोला ना स्टोर से घुसने में लोग डरते हैं, वो मेरी एक खासियत थी, मैं कभी डरता नहीं था। जाके क्या प्राइस है तो पूछना है, शर्माना क्यों है? हो सकता है कोई डील चल रही हो सकता है कोई ऑफर चल रहा हो सकता है, यू नो। एंड बहुत बार लकी हुआ हूँ मैं, बहुत बार लाइफ में लकी हुआ हूँ। मैं जब काम नहीं करता था, आई वॉन्टेड अ TV. I wanted, so I used to love music. I'm a guitarist. I used to love music. I used to love watching concerts, you know, old concerts, you know, and my friend had a big TV in her house, you know, projector TV आता था उस टाइम पे, नीचे projector machine होती थी, project करता था पीछे से, and cool speakers, and my TV was a puny, and I went to dad, like, you know, like dad like, no, you have a good TV, it's a nice TV, वो ताम झाम नहीं चाहिए हमें, you don't want to do that. I was like, yeah, I want that TV. And I took my TV out of my room, and for 2 years, I did not have a TV. I was like, I'll watch TV on that TV. वाओ, टीवी देखना बंद कर दिया। TV देखना बंद कर दिया. And I was like, I want that TV in my room because my room deserves that TV. And not to trouble my parents or anything of that sort. No. I never told them this. I will work to buy that TV. And I had a little bit of pocket money. I started putting aside. And I remember वो टीवी उस टाइम पे 5.5 लाख रुपए का था। वाओ। एंड आई वाज लाइक कि नहीं है, कोई नहीं,
इफ़ आई डिसिप्लिन के साथ अगर मैं चलूँगा ना, थोड़ा थोड़ा पैसे बचाएंगे, फ्यूल के पैसे, गाड़ी कम चलाऊँगा, फालतू के दोस्तों के साथ नहीं जाऊँगा, मूवीज़ कम देखूँगा, इम्पॉसिबल टू अचीव, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। 5.5 लाख उस समय नहीं, इम्पॉसिबल इतना नहीं थे हमारे पास कि मैं अगर पूरे साल भी इकट्ठे करता था 25-30 हज़ार रुपये इकट्ठे होते थे, तो वो बट पता नहीं क्या था, आई वाज स्टूपिड यंग, मे बी उसी यंग में कभी बार अच्छी चीज़ें हो जाती हैं, आई केप्ट इट ऑन साइड कि नहीं हम तो यार लेंगे। नाउ करते करते आई हैड अबाउट 55,000 रुपीज़ इन माई वो 55,000 रुपये हो गए। एंड ऐसी दुकान में घुसने वाली बात, एक जंबो करके कंपनी होती है, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स, या और मैं जब भी होता था ना, घूमते फिरते मॉल में गए तो उसके उधर घुसते टीवी देखना अच्छा लगता था, वहाँ प्राइस लिखे होते थे, सब कुछ लिखा होता था, तो वहाँ मैं घुसा और वहाँ पे एक टीवी 91,000 का वही वाला टीवी रखा हुआ था। एंड मैंने कहा 91,000 का ये क्या हो गया? क्या सर ये डिस्प्ले पीस है, अब इसका नया आ गया है, तो ये डिस्प्ले पीस है और ये हम बेच रहे हैं। मैंने कहा यार ये बहुत सुंदर है, पैसे तो थे नहीं, 55,000 रुपये थे। मैंने कहा मेरे को चाहिए अभी, आई वांट टू बाय दिस। क्या करें? मेरे पास एक ऑक्टोपैड होता था बीट्स का, म्यूज़िक का, एंड आई हैड इट, सो एज आई वेंट एंड आई लाइक यू नो व्हाट, आई विल सेल दिस राइट नाउ। आई कॉल्ड वन माय फ्रेंड वांटेड, वो बाहर से लेके आए थे, तो वो 40,000 रुपये का मैंने ऑक्टोपैड बेचा और वो वाला टीवी, एंड आई गॉट दैट टीवी इन माय रूम। नाउ neither of those things would have happened if I didn't have perseverance to collect something which I want. मुझे पता है मुझे वो चीज़ चाहिए, तो मैं उसकी तमीज़ से उसके लिए मेहनत करूँगा, उसके लिए पैसे इकट्ठे करूँगा। I'll not waste my money and go for the next best thing. दुनिया में लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बेस्ट थिंग ले लेते हैं। मेरे पास 30,000 में जो बेस्ट आता है मैंने वो ले लिया। नहीं जी, सेटल नहीं होना लाइफ में। आप अगर सेटलमेंट करने लग जाओगे ना ज़िंदगी में, तो सेटलमेंट में ही रह जाओगे। लग्जरी अगर आपको अचीव करनी, सेटल, डोंट सेटल। आई वॉन्ट दैट, सो आई वॉन्ट दैट। आप सेटल मत करो, और दूसरा ट्राई करना नहीं देखो, किस्मत कभी का मौका दे देती है आपको, लेकिन अंदर घुस के शुरू में घुसना तो पड़ेगा ना, क्वेश्चन पूछना तो पड़ेगा ना, तभी शायद कुछ चीज़ आपको कोई खास चीज़ मिल जाए। एंड द डील्स हैपन टू यू, यू हैव टू गो एंड इंक्वायर। किलर मैन, मज़ा आ गया। हाँ, सुपर। मुझे बताओ यार, लग्जरी कैसे बनाए? मेरा ना एक ड्रीम है, मुझे बहुत इंटाइस करती है लग्जरी। जैसे वो दुबई के उस मॉल में जाते हैं, वो वहाँ पे चालू होता है गुची, फिर अरमानी, फिर ये जिमी चू, फिर ये म्यू, पता नहीं क्या क्या ब्रांड्स हैं। मेरे को बनते कैसे हैं लग्जरी ब्रांड्स, बनते कैसे हैं? मेरे को केस स्टडी करनी है इस पर। डू यू नो समथिंग, हाउ डू दे क्रिएट? मतलब हमेशा उनके पास क्या है रूल लग्जरी का? सर लग्जरी उन्होंने कुछ खास नहीं किया, उससे नहीं बने, वो अपने कस्टमर से बने हैं। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई सर, इट्स अ सिंपल डिमांड एंड सप्लाई सिस्टम। आज कस्टमर को क्यों उनकी ज़्यादा डिमांड है, क्यों दे वांट टू एस्पायर टू गेट दैट, आज एस्पिरेशन चीज़ें क्यों हैं, व्हाई आर दे दैट सो एस्पिरेशन, सो they have worked towards it. And इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम, काफ़ी ब्रांड चेंज हो गए हैं by the way. I like a few brands and I don't know where they are right now, I'll be very honest. I saw certain though a lot of them have copied also. एक Minimalist करके एक brand आता है company का. Minimalist, yeah. I saw that bottle once and I was like, this brand will grow. Nice. Because I knew aesthetic sense, negative space, designs, you know. Now what is that? It's like into that small detailing, the structure that they've done. Correct. I know it's a copy. Yeah, I know that. Yeah. But still, दिमाग था ना बंदे का, कॉपी किया ना. Good copy, good timing for the country. Yeah. अब सेम एक है और ब्रांड है अराटा. Correct. I saw the packaging, I was like, ये क्या किया है यार? And it is not that a brand has to be a product. शायद अराटा था अच्छी हो, I don't know. Correct. मेरे को कर्ली बाल नहीं है मेरे. सही बात है. I सोचता प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी हो, बट एस्थेटिक सेंस आप किस तरीके से, छोटी छोटी डील में आपके यहाँ पे आया, अभी आपने वहाँ फोटो लगा रखी थी मेरी, वो कर रखा था, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग की मुझे कितना थोड़ा सा, ताज में क्या अच्छे खास पे, आप ताज होटल रह के देखो, that little bit of effort, that little bit of extra, or what is difference between Oberoi and Radisson or anything else? Life में that is your brand in your own way you have to add that little bit of an extra, that अगर मुझे ओला या ऊबर में किसी को चूज़ करना है, प्राइसेस के सेम है, वो है, मैं किसको चूज़ प्रेफर करूँगा? It is that what makes a brand luxurious. That's where you have loyal customers. That's where you have कि यार मेरी लॉयल्टी किस पे वो है, ब्रांड्स
कस्टमर्स के साथ बनते हैं, और आपके कस्टमर जब आपको रॉयल्टी की तरह ट्रीट करने लग जाएं कि मेरी लॉयल्टी इस ब्रांड के साथ है, आज ये दोनों चॉकलेट में से मैं कौन सी चॉकलेट खाना पसंद करता। हाँ, बट लग्जरी इज स्लाइटली डिफरेंट. लग्जरी इज लाइक कुछ, मतलब इंडिया जैसी कंट्री में मुझे अगर 2 लाख का बैग बना के बेचना है, बना सकते हैं आज की? हाँ, क्यों नहीं बना सकते? है अभी इंडिया में ऐसा कोई? 2 लाख के आसपास तो शायद नहीं है मेरे हिसाब से, बट कस्टमर्स बहुत हैं। दैट्स अ स्पेस. वो बिग स्पेस, 2 लाख क्या चीज़ है? आई नो पीपल बाएंगे 1 करोड़ का बैग, तो 2 लाख तो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन नाउ व्हाट मेक्स यू स्पेशल, अब वही वाली बात आ जाती है दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द एलिमेंट चेंज। कैसे कर सकते हैं? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? आप इंडिया की बात कर रहे हो, ब्रांड्स बहुत सारे हैं सर, जो बहुत यंग ब्रांड्स हैं, दे हैव गॉन। लोरो पियानो की बात कर लेते हैं, इट्स अ ओल्ड ब्रांड। लोरो पियानो वाज नॉट जस्ट दैट फेमस अ ब्रांड, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। अचानक से in 2 years, well, actually 4 years, I would say, how has Loro Piana become? And can you believe Loro Piana is what Loro Piana is today because of an influencer, Is it? the Gustad guy. Oh. You can actually see his posts versus their company's turnover. You can actually compare it. There's a study also, you can actually do that. Amazing. So what are you offering? What are you giving? What the person feels while wearing you. आपको खाली प्रोडक्ट नहीं बेचनी, आपको हर चीज़ बेचनी, इमोशन बेचना. इमोशन बेचना है। वो चीज़ लोग मिस कर जाते हैं, सोचते हैं कि यार मैं हाई प्राइस टैग रख दूंगा, कोई खरीदेगा नहीं। सर, हाई प्राइस टैग से नहीं होता। बहुत ब्रांड हैं, आज भी नहीं बिक रहा। मैं नाम नहीं लूँगा, लॉट ऑफ ब्रांड्स हैं, लग्जरी ब्रांड्स हैं, खाली पड़ी हैं दुकानें। क्यों? वो ब्रांड क्यों नहीं बिक रहा और वो ब्रांड बिक रहा है, और वो ब्रांड क्यों नहीं बिक रहा, वो वाला ब्रांड बिक रहा है? Why? Thing is, what thing are they selling to you? Are they selling you just a product, or they're selling a complete lifestyle and emotion around it? Any good luxury brand in India that you say that they've done well, which a lot of people can relate to? Just tell them what are the Da Milano. Yeah, they did a good job. What are the 3 things that they did well? Quality. They did good quality products. They priced it very sensibly, and the name. Name is also important. 90% is the name. Oh, really? 90% is the name, sir. A lot of people don't realize, but half the people would not know that Da Milano is an Indian brand. They captured the psychology of the person. And the person went and shopped there. I was like, oh, Milano, यार, मैं 3,000 रुपये की बैग, वही 3,000 का बैग होगा, मैं 16,000 देने को रेडी हूँ या 8,000 या 9,000 देने को रेडी हूँ। क्यों? मिलान लगा है सर, मिलान वर्ड लगा है। साइकोलॉजी है सर, एंड आई एम नॉट किडिंग। 90% नाम होता है, पीपल डोंट रियलाइज। 90% नाम होता है एक लग्जरी ब्रांड बनाने में. सर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पीपल डोंट रियलाइज द नेम मैटर्स. And then what next? Name matters, a very important thing. Name matters, and after that the quality. You can't sell one thing you have to understand about Da Milano, they stand by their product. Their quality is phenomenal. You see all, बहुत सारे brands आए, उन्होंने तो बड़े बड़े celebrities भी लिए, किसी ने करीना कपूर को लिया, किसी ने किस को लिया, तो बेचारे किसी ने को नहीं लिया, फिर भी why are they good? Their leather matter, their product is good, real leather, and they stand by it. Lifetime guarantee है सर, प्रोडक्ट खराब होगी आप जाइए ठीक करके देते हैं. Plus the way they are everywhere. सबसे बड़ी दूसरी बात is look at their presence on all airports and all malls. They have made sure that the brand recall is wonderful for you. You know, their stores, their designing, their price point, their product ranges. ये सब पे उन्होंने मेहनत करी है. It's just not about the name, but they did all that. They did the back end thing also for themselves. So that's why people are ready to pay that little bit of an extra value, little bit of वो एक तो नाम ही लगता है उनको, comfortable लगता है, and yes, the product itself is a fabulous product. Wow. So see how name mattered, how the psychological the play came. Name, positioning, pricing, and I think एक और चीज़ मैंने देखा है लग्जरी में, ये scarcity creation है. मुझे ऐसा लगता है कि लग्जरी इज़ अ लॉट अबाउट ये ना. मैं अभी गया था वहाँ पे सिंगापुर, आई वाज जस्ट चेकिंग आउट वॉचेस. मैं ऐसे ही घुस के चला गया. उसने कहा 80 बनी है. नहीं सर, मैं आपको निखिल कामत का भी पॉडकास्ट देख रहा था. ही ऑल्सो से कि हम तो ब्रांड नहीं जाते क्योंकि हमें ध्यान नहीं देते, वो भगा देते हैं. मैं जाता ही नहीं हूँ, मैं खरीदता ही नहीं हूँ. यार
आप अंडरस्टैंड करो, आई एम अ स्मॉल मच टाइनी बिजनेस इन कंपैरिजन टू मेजर ब्रांड्स, राइट? What thing I've learned in business, I choose my customers. I do not want to deal with everybody. Yeah. They are good customers, they are bad customers. Every company knows that. If you're mature enough, you've worked enough, आदमी 15 साल business में हो गए हैं. If you've worked enough and you've done enough dealings, you choose. We also say no to customers. कस्टमर है जो परेशान कर देता है यार, निगोशिएट करता है, दिमाग खराब करता है, दो काम करेगा. एक कस्टमर है जो बिना पूछे आता है, सर ये काम करो, लो जाओ. What will I choose? Choose that customer. I don't want to deal with this customer. First time buyer आता है, first time buyer आया, उसको पता ही नहीं है, वो 20 क्वेश्चन पूछेगा. I don't want to answer 20 questions. मैं कई बार आधे भी रिप्लाई छोड़ देता हूँ. कोई मतलब ना क्वेश्चन पूछता है, आप कैसे कर रहे हो सर, क्या है, वो है, कितना वो है, छोड़ दो. बट हाउ टू, मतलब ये गलत नहीं है कस्टमर क्रिएशन में. नहीं सर, इट्स अ चॉइस. एक लेवल पे आने के बाद ना, आई डू नॉट वांट टू आंसर. मैं एक बार आपको हो जाता है ना कि मुझे नहीं बताना, मैं नहीं करना चाहता, आई एम डन विद इट. यू नो, यू हैव, एक बार होता है ना कि यार बिजनेस है मेरे पास, कमी नहीं है. अब उसके लिए मेरे को नहीं आपको आके, आई डोंट वांट टू सेल, यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट देन यू कम टू मी. मेरे को नहीं बेचनी आपको प्रोडक्ट. सो ब्रांड्स हैव टू बी स्लाइटली स्नॉबिश. इट्स नॉट अबाउट स्नॉबिश सर, इट इज चॉइस है. कस्टमर भगवान है बोलते हैं, अब यहाँ पे तो कस्टमर भगवान है, मैं मना नहीं कर रहा, बट वो आप आगे उसमें कीड़ा निकालोगे, ये करोगे, वो करोगे, मुझे नहीं चाहिए. कीड़ा क्यों निकालो, क्या है ही नहीं कीड़ा सर. और अगर कीड़ा है तो मत आओ, आप वहाँ चले जाओ ना, मैं मना नहीं कर रहा. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कम एंड ईट हियर एज रेस्टोरेंट. आई एम नॉट सेइंग यू हैव टू कम एंड ईट हियर. हाँ, अगर खाली रेस्टोरेंट पड़ा है, कोई आ नहीं रहा और मैं तो ऐसे ही खाना दूंगा नमक डाल के चीनी की जगह, तो अलग बात है, देन यू आर स्टूपिड. आई एम नॉट सेइंग, इफ माय प्रोडक्ट इज गुड, इफ माय प्रोडक्ट इज perfect and the best, and there are a line of 100 people outside, and a person comes there and says कि सर इसकी थोड़ा change कर दो रेसिपी, उसमें ये कर दो, वो कर दो. If I have the capacity to do it and I have to serve to them, I will do it. God bless them. But if I, and वो मेरा रेगुलर कस्टमर खड़ा है जो हर दूसरे दिन आता है, और आप महीने में एक बार आते हो और मुझे कहते हो कि मैं पूरा मेन्यू आपके लिए टॉपल डाउन करूँ. Sorry sir, I cannot do it. I play by my rules. I have certain rules. The other customer will suffer. True. I'm sorry, I might not be able to accommodate you right now. So I'm not saying be rude to them, but just say यार I can't accommodate you right now. And that लोगों को बुरा लग जाता है कि आपको accommodate नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अच्छा ब्रांड नहीं है. सर सॉरी, वो लिमिटेड एडिशन चीज़ें निकालते हैं, वो आपको accommodate नहीं कर पा रहे, तो it's what those Ferrari doesn't. There's so many times there's a big fiasco in the country currently because somebody got a Ferrari, he was not supposed to get allocated because he didn't qualify for that car, but उसको allocation हो गई, वो डीलर ने हेल्प करके उसे दिला दी, तो थोड़ा पंगा. So it is not always about वो भी अच्छा कस्टमर है, उसके बाद 3 गाड़ियाँ हैं, पर वो 3 राइट गाड़ियाँ नहीं है जो होनी चाहिए उस गाड़ी के लिए. So और उसको वो गाड़ी चाहिए थी, so उसको तो बवाल हुआ इस पे. हाँ, बहुत बड़ा. So That's rude. sir, sorry, it is that's how I operate, sir. You have to be my loyal customer, you have to give your heart and soul to थोड़ा खून कतर निकाल के हमें देना पड़ेगा, तभी हम आपको वाली चीज़ देंगे. अब चीज़ है, मैं इतने बनाता हूँ. So it is like that. ये है मेरी वॉच, लॉटरी से निकलती है. It's not expensive. Understand? It's not expensive. Fair amount. I'm not saying ये बड़ा expensive word, बड़ा complicated. तुम्हारा थोड़ा अलग होगा expensive for the audience. ये audience के लिए सवाल है, इनकी वॉच कितने की होगी, जरा put it in comments. The best one possibly might win something from him. We'll figure it out. It's not about expensive or not expensive. It's a beautiful movement. It is by a watchmaker I really admire. I've had the pleasure of meeting him multiple times, and he's a very nice, I would not say a friend, but yeah, very nice acquaintance, and I really like him. His work has inspired me since he was in, he turned a company completely around. Harry Winston was where they were going through a bad phase. He got watches and really turned it around. Now he started his own brand, and his watches were extremely priced. They still are. Aaj bhi, maybe even I can't afford one of his beauties, and they are stunning. They're, complications and everything. So he did this thing for the masses, where they make limited edition. You can see it moves. It's a spinner. It's called Mad. Yeah. So it's a Mad. So they. Very interesting, by the way. Yeah. So they introduced limited edition, 999 pieces, and they do a lottery. So you can apply in that lottery, and if you win, you get a chance to wear at a minuscule cost.
Minuscule for maybe for lot, for maybe not for lot. I will not go into. Let's not share that. So leaving that aside, but that's the fun part. Wow. Every time the raffle happens, it happens like maybe once a year, maybe twice a year. कभी और होता भी नहीं है. So whenever raffle happens, I apply. I go excited like a kid. Go through that thing. I put my form. अब तो चलो उन्होंने रूल्स बदल दिए दैट यू विद क्रेडिट कार्ड. पहले तो क्या होता था, मेरे पास 10 ईमेल होती थी ना कंपनी की, 10 से अप्लाई हो जाती थी. फिल द फॉर्म 10 टाइम. खुशी के आगे यार, it'll be very good, it'll be fun. So it's exciting. It's a collector's thing. It's a collector's thing. It's not, and when you get so excited, you won the lottery. Only 1,000 लोगों को मिलेगी. अब That's a beautiful way of brand creation also, by the way. So अब तो उन्होंने इस बार भी I applied. I was waiting कि मौका आएगा. I was on a flight. I was like कि मैं लैंड करूँगा मैं शायद इस बार तो क्योंकि they started कि आपको पैसा पहले देना है. Now they have started कि आप पे पैसा पहले दो पूरी वॉच का, निकलेगी तो आपके पैसे हम रख लेंगे वरना आपको पैसे वापस देंगे. तो I was assuming कि जो लाखों लोग अप्लाई करते थे इस बार शायद थोड़े कम करेंगे बिकॉज फुल अमाउंट देना है आपको पूरा. एंड आई वाज अज्यूमिंग शायद मेरे चांसेस, आई हैड दैट फीलिंग कि इस बार मेरे चांसेस ज़्यादा है. क्या हुआ? Unfortunately, you have not Qualified this time, huh? but please keep applying. So I like मुझे लेनी है यार, ये वॉच तो लेनी है मुझे. So I paid the premium for it. तुम ही जैसे लोगों के लिए बनते हैं ब्रांड्स, मुझे पता चल गया है. बट एक बात बताओ, इंडिया में अगर जैसे आई वांट टू नो, बिकॉज दिस शो ऑन काश से आकाश, एसेंशियली वी ट्राई टू टेल पीपल हाउ टू बिल्ड बिजनेसेस एंड व्हाट बिजनेसेस टू बिल्ड. तो एक दो ब्रांड्स या प्रोडक्ट टाइप्स बताओ जहाँ पे लग्जरी ब्रांड बनाया जा सकता है. यहाँ पे जो ऑडियंस है, आई वांट टू चैलेंज देम दैट दे कैन बिल्ड अ लग्जरी ब्रांड, बट विच कैटेगरी, वो बड़ा टफ लगता है. और कैसे, थोड़ा सा बताओ. बिजनेस बनाना है, लग्जरी बिजनेस. Sir, right now it's services. Okay. One thing which is extremely missing in the country. Why product भी क्यों? हर कोई वही वाली बात आती है ना, मैगजीन देख के सारे वही सब चीज़ें करनी है, मैगी कार की बना देते हैं, फैशन बनाते हैं. नो सर, luxury is not just about that. Right now people have money, they want quality. आज सिंपल सी बात है, स्विगी क्या है सर? स्विगी कह रहा हूँ मैं, ये आपका ब्लिंकिट क्या है? इट्स अ लग्जरी. करेक्ट. इट्स अ लग्जरी बिजनेस सर. मैं वही 10 रुपए के चिप्स आपको 50 रुपए में बेचूंगा, बट आपको 2 मिनट में चाहिए. बिल्कुल, टाइम की वैल्यू है. टाइम की वैल्यू है, करेक्ट. मैं आज उसके 4 गुना देंगे होते रेडी हूँ, पर मुझे अब भी चाहिए और वो बंदा आके आपको हैंड ओवर करेगा. वो लग्जरी है सर. तो अगर आपको लग रहा है वो लग्जरी नहीं है तो इट इज़ लग्जरी ओनली. मैं अपने आराम से घर पे बैठा हूँ सर, मेरे को दुकान पे नहीं जाना चल के धूप में. वो बंदा भागा दौड़ा आएगा, सर ये आपके लिए चिप्स आए हैं. इट्स लग्जरी सर्विसेज. यू अंडरस्टैंड व्हाट पीपल आर रेडी टू पे फॉर एंड हाउ मच एक्स्ट्रा दे आर विलिंग टू पे फॉर. पासिस का फियास्को हो गया, कोल्ड प्ले जो भी था. सो बिजनेस सर, कौन सी दे वांट दैट आई वांट कि सर मैं घर बैठे, आई डोंट हैव टू गो ऑनलाइन. मैं 2 घंटे के लिए वेट कर रहा हूँ, टिकट मिली नहीं मिली टिकट, आई एम रेडी टू पे. एंड कस्टमर्स पे करने के लिए हैं. बिगेस्ट प्रॉब्लम लोगों को लगता है कि मैंने दिया ना पैसे एक्स्ट्रा पाने के लिए. बहुत कस्टमर्स हैं who have the money to pay extra to get what they want. बिकॉज एक लाइफ में आया था कि यार मुझे चाहिए, खत्म बात. पल्स पता नहीं. वही वाली बात है, फूल वाली जो पहले स्टार्ट किया था हमने कॉन्वर्सेशन. 10 रुपए का फूल भी है, 40 रुपए का भी फूल भी है. अगर आपको 40 रुपए का फूल पसंद आता है और आप खर्च करने को रेडी हो, तो वही लग्जरी है, वही यहाँ पे है सर. हम घूम फिर के लग्जरी समझना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है. आज वही वाली बात है, रेज़र 10 रुपए का भी मिलता है, रेज़र 300 रुपए का भी मिलता है. उसमें 3 ब्लेड्स होते हैं, जेल होता है, वो इधर उधर स्विवल भी करता है. वाई आर यू स्पाइंग दैट 300 रुपए का? 10 रुपए का ले लो ना सर. सही बात. काम दाढ़ी काटनी है. It's a brand appeal that matters to you, the convenience, the packaging. I feel nice. For anything you do in life, you choose where to spend your money, how to spend your money. In today's world, if you want to start a luxury brand, in simple terms, find a space where you can serve. Find a space जो आपको लगता है कि यार ये जगह मुझे वो है. फॉर एग्जाम्पल अभी इलेक्ट्रिक में आ जाते हैं. इलेक्ट्रिक कार्स आर बूमिंग लाइक क्रेजी. We have such a huge market for electric cars, correct? Now, what is the issue that you feel coming in the next few years? सोचो, आप ही बताओ सर, क्या लग रहा है आपको? प्रॉब्लम क्या होगी इलेक्ट्रिक कार्स आते ही? I think electricity, big problem कि इतना हम चार्ज कर पाएंगे. प्रॉब्लम है you can solve as an individual. क्या प्रॉब्लम? चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है जी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया आपका. बैटरी रिसाइकलिंग एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? ठीक है. कस्टमर एज अ कंफर्ट कि जो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा किस चीज़ का देना चाहेगा. सोचो. You would want range.
रेंज अगेन वो तो मैन्युफैक्चरिंग का वो है. एज अ सर्विस प्रोवाइडर आप उसको क्या सर्विस ऐसी दे सकते हो जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे दे. Again, luxury. Give me comfort. Comfort, mistakes. There are going to be situations where people will have cars stuck around the corner, and like for example, charge नहीं है. अब मैं example दुबई का देता हूँ. I have a lot of my friends who have all supercars. Like अभी यहाँ पे भी आ गया वैसे fuel buddy, but वो कहते हैं कि यार मुझे स्टेशन नहीं जाना. मेरी 4 गाड़ियाँ 5 गाड़ियाँ हर क्या होता है कि छोटी रेंज होती है सुपर कार्स की रेंज. मैं भगाता हूँ फ्यूल खत्म हो जाता है. तो 18 किलोमीटर चलती है कुछ सुपर कार्स मैंने सुना. मेरी खुद के बहुत समटाइम्स वो होती हैं तो मैं फ्यूल जाता रहूँगा क्या भरवाने. टाइम वेस्ट है. अगेन यू डोंट डू द स्मॉल जॉब्स व्हेन यू आर रिच. यू डोंट वांट टू डू द स्मॉल जॉब. मीनियल जॉब्स आप हटाए तो दिमाग में टाइम नहीं है. वो करूँगा तो ये कब करूँगा. सो मीनियल जॉब यू कीप ऑन साइड. सो मीनियल जॉब हटाने के लिए यू कॉल देम. आप दे कम विद देयर पूरी ट्रक लेके आते हैं. दे डू योर फुल टैंक. दे चार्ज यू द सेम मनी एंड दे गो. दे विल ऑन योर डोर स्टेप. एग्जाम्पल ना सिविल चार्ज के पंगा होगा. चार्जेस होंगे. अब जब मान लो आप जैसे ऊबर है ना, जब बैटरी आपके फ़ोन की उड़ रही होती है डबल द चार्ज कि सर आपको फ़ोन चार्ज करना है. सिर्फ आपकी बैटरी डाउन है. There'll be a lot of companies who can do that. It's a luxury. There's already someone who's doing that, by the way. Maybe. Second, Come to the towers. they come to the towers. Maybe that's a good thing. I don't know. I don't have electric car, but the thing is that it's good. Second, to the very frankly speaking, charging ports, luxury charging ports. Please understand, I would want I have a dedicated space. I'm ready to pay a little bit of an extra. I can park my car there, get it. I don't mind paying. I don't want to go to a public charging place or maybe in office spaces, this and that. I get a parking space, nice space. अपने यहाँ पे charge हुई, वो हुई. And that's about it. And there's always a demand. ऐसा नहीं कि you don't have to open 10 spaces. 3 गाड़ियों की जगह आपने रख दी कि सर स्पेशल पार्किंग है, क्लोज इनक्लोज्ड वो है. आइए गाड़ी चार्ज पार्क करिए, कोई इशू नहीं है. इलेक्ट्रिक हैवी कार्स है. स्पेक्टर आ गई 8.5 करोड़ की गाड़ी है. You launched it, by the way. Yeah. We launched it for Rolls-Royce as a magazine. But 8.5 करोड़ 9 करोड़ की कार है. आज मैं जा रहा हूँ यहाँ से जयपुर और इलेक्ट्रिक करनी है. चार्ज में भी 2 बार करनी है. आई डोंट नो उसकी रेंज टेक्निकली स्पीकिंग एग्जैक्ट रेंज. It might just go to Jaipur and back, but mainly let's say if I'm on a highway, I'm going to a little further than Jaipur, maybe much more further than that. I have to reach. Where will I recharge my car? आपको लग रहा है मैं MG हेक्टर के साथ खड़ी करके वहाँ पे रिचार्ज करूँगा. I might not feel comfortable. ऐसा नहीं करूँगा. करना है तो करना है. People do not all people are snobbish or care about that. Mostly people don't. But I feel ये ठीक है. The point is maybe वहाँ पे यार लोग इकट्ठे हो जाएं, स्क्रैच लग जाए. Not always कि उनको कोई शर्म आती है उनके साथ खड़े होके. लोग बस ये करते हैं कि यार sometimes like yesterday in Bombay खड़ी मैं I was in a Bentley, I was with somebody. खड़ी Bentley को किसी ने पीछे ठोक दिया. हमने and our thought process was बेचारा I think देख के excited हो गया और उसने ब्रेक लाइन खुल गया और पीछे से बाइक मार दी. हो जाता है. So nobody man ran away. We tried किया कोई नहीं. बट ठीक है ही ran away. बट हो जाता है. सो पीपल आर वर्ried यार उनकी एक्सपेंसिव अचीवमेंट्स उन्होंने लाइफ में मेहनत करके कमाया है. कोई स्क्रैच मार गया या कुछ हो गया तो दे वांट. सो सोचने का जाए अगर आप ऐसे निकालोगे तो 100 आइडिया निकल जाएंगे सर कि कहाँ आप सर्व कर सकते हो. आज के ज़माने में वी आर ग्रोइंग. आप मिलियनेयर्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग. बिलियनेयर्स आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन इंडिया. आप सर्व करने जाओ और उनको भी छोड़ दो सर. एज अ जनता ऑडियंस आपके पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है. यू हैव एक्सटेंसिव डिस्पोजेबल इनकम एज अ ऑडियंस, एज अ लार्ज ऑडियंस. आज हम लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा है. 1000 रुपये की टिकट या 500 रुपये की पॉपकॉर्न लेने में हम घबरा नहीं रहे हैं. अब वही 20 रुपये के पॉपकॉर्न थे थिएटर में 500 में बेच ही रहा है ना. वो लग्जरी तो ही है. तो आप वो भी क्यों नहीं करते. मासेस के लिए भी आप कोई सर्विस ढूंढो. ब्लिंकिट ने भी किया ना. थिंक फॉर अ आइडिया विच कैन सर्व द मासेस. और वो 10 रुपये जगह 20 रुपये ज़्यादा खर्च करेंगे. दैट्स लग्जरी. Just find it out. So you guys know what to find out. चलो फिनाले में पुरस्कार से 2 चीज़ें पूछेंगे और ये बतानी है. The most luxury thing that you have owned, देखो शेयर करना पड़ेगा. And what do you want to own? Because I know that when you aspire for something you get it. So let's talk about manifesting. So I'm actually off track. My goal was to have a Rolls Royce. My goal was to own a Rolls Royce Loves 37.
I am not close to it now, and they've been keeping increasing the prices like anything. हमारे taxation और ये यूरो और इंडियन रुपी का जो पंगा चलता जा रहा है. जब मैंने काम शुरू किया था तो रोल्स रॉयस 3-4 करोड़ की आती थी, फैंटम वो भी. अब फैंटम ऑलमोस्ट 17 से 21 करोड़ की हो चुकी है. So they keep on shifting the goalpost. The problem is that. बट पुरस्कार ने सोचा है तो फिर I don't know. भगवान ने अगर चाहा तो होगा. I am not myself. अरे वो स्टोर में वो जो डिस्प्ले पीस है सर वही वाली बात है. I don't say I'm a villain. I'm nowhere close to. I'm not a very rich person. I'm a very humble and very simple person. Luckily, the environment that I move into, वो सब लोग रिच हैं. बट ये याद रखना कि कोई आपको कोई पैसा नहीं देने वाला. अगर वो रिच है तो ऐसा नहीं है कि वो आपको पैसा निकाल के दे देगा. आपको मेहनत से ही कमाना पड़ेगा. आप अपने पाथ पे हो, वो अपने पाथ पे हैं. तो पुरस्कार बहुत ही हम्बल इंसान हैं और सबसे ज़्यादा लग्जरी थिंग क्या ओन करते हैं? लग्जरी थिंग ऐसे कार बता दो चलो अपनी. कार्स हैं बट टेक्निकली स्पीकिंग तो यार EMI आती है उसकी, तो मैं कहाँ पैसे दिया है अभी तक पूरा उसका. फिर भी ओन कर रहे हो ना, चला रहे हो. किसी इंसान की कार देख के ना इम्प्रेस मत होना. सो कार्स आर नॉट अ वेरी बिग डील. Watches, I don't buy too much, I'll be very honest. I have watches. I have expensive watches. But ठीक है. Most expensive thing, honestly speaking, बड़ा सोचना पड़ेगा. I have a lot of 3 बता दो चलो. Most expensive thing that I have an expensive bag, extremely expensive bag. That's I consider it as an investment. I don't consider it as like a purchase. तो वो मैंने investment कर रखा है. तो I don't know if I will call it a purchase because ये भी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है that I would want to unlock. But हाँ, which bag and how much? I would not like to price. It's quite an expensive bag. लोग फिर गालियाँ सुनाएंगे मुझे कि इतना expensive bag में आपने क्यों पैसा डाल रखा है. But it is better than a property or real estate or stocks because I understand, so I know. So I've invested into that product. I park my money differently than others. मैं SIP नहीं कर रहा बैठ के. अच्छा. Brand? Amis. So there's a good bag, and I also have a interesting watch. I don't use it because again it's an investment. It's packed, it's sealed, it's double sealed. So it's never even seen light of day. मतलब उसमें कटा भी नहीं है उससे आज तक हमने. वो as it is pack रखी हुई है. So that is also an investment. That's an expensive watch. Equivalent to few high-end top luxury cars. Okay. Maybe. Yeah, but again, as I said, it's an investment. Nice. हाँ, ये बताओ लग्जरी इन्वेस्टमेंट कैसे बनेगा? मतलब ये बहुत लोग कर रहे हैं कि आई एम इन्वेस्टिंग इन luxury watch or a shoe or a bag which someone will buy. This is an investment, sir. I bought it. मैंने थोड़े दिन पहले लिया है. It's an investment technically. It's really an investment? Luxury is an investment? I need it, sir. But क्यों? मतलब ये तो वापस बना देंगे ऐसी watch. नहीं sir. That is the thing. What is special about this watch? Let's. I'll take it off. I'll explain it to you. Now, this person creates these watches, correct? इसमें खास सबसे बड़ा खास बात क्या है? This is a special. Please go ahead. Take a look. It is interesting, no doubt. The mechanics of it, interesting. It's a mad edition. It's a mad edition because we are sitting with a mad guy. So read down. उसके साथ में आपको एक नाम दिखेगा. Time to Love. Huh? Yeah. Okay. John Charles de Callaghan. So JCDC. He's normally known as JCDC. He's a French designer. He's almost 80 now, if I'm not wrong. He's an iconic French designer. Now, this was a special collaboration with Max Brucer. Max Brucer is the guy who owns the company MBNF, and Mad Edition he created. Now, in Mad Edition, he did a special collaboration with this French designer called JCDC, and he created these 999 watches. And this is his interpretation of the Mad Watch. Mad Watch अलग भी आती हैं. They are different colors, red, green. Those are regular Mad Watches. Also good investment, not bad. But this particular, why did I choose out of all those? I said कि मुझे JCDC version क्यों लेना है? Because JCDC is this is the only collaboration, only limited edition collab that Mad has done till now. This is a special watch. It has angels. These are actually angel wings because he loves drawing angels. Wow. So, these are angel, and this is a special watch called Time to Love. He wants to showcase love in the world. He wants to showcase color, how world is full of color. Create. So, ये एक
वो है क्या कहते हैं, इट्स अ लिमिटेड थिंग, ये एक बार है सर, ये उसके बाद नहीं आएंगी। और कुछ टाइम बाद ये 900, दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, 900 ही तो हैं। एंड दिस हमेशा कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो चाहेगा कि यार मुझे ये वॉच चाहिए। मे बी क्योंकि नहीं है तो कुछ अवेलेबल है मार्केट में, क्योंकि जो छोटे जो क्विक मनी मेकर्स होते हैं जो क्विक बनाना चाहते हैं, लॉटरी निकल गई, वो जैसे होता है ना, प्लॉट निकल के आया सर अभी बेच दो, होल्ड नहीं करना। सो क्विक फ्लिप करने वाले, क्विक फ्लिप वाले से ले लिया, उसको भी पैसे अच्छे मिले, ही मेड ऑलमोस्ट डबल हिज मनी। सो टेक्निकली उसकी भी इन्वेस्टमेंट अच्छी हो गई, उन्हें एक वॉच खरीदी उसने डबल में बेची आगे, तो ही डबल्ड हिज मनी लाइक दिस। So you'll मतलब when you collect things, then the price appreciates. नहीं, बिकॉज 900 बिजनेस है, जिसको मिली इनकी लॉटरी लगी नहीं लगी तभी लॉटरी तो बोलते हैं। इट्स लिटरली लॉटरी। सही बात है। So investment, you need to understand, you got the allocation, and now you are able to get more money outside because people like me are ready to pay for it, because I want to acquire it. So how is the scarcity keeps on going up. 15 years down the line, maybe this watches are 100 खराब हो गई, कुछ टूट गई, कुछ गुम हो गई, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई. It becomes smaller, and then a person comes and I want to buy this watch, or like art for that matter. Sure. This is smart as a technique. It's yes. So you should have an eye for it. You should know what to buy, when to buy, how to buy, and क्या चीज़ बढ़ेगी, क्या चीज़, हर चीज़ नहीं बढ़ती लग्जरी में. 90% तो आपको शौक के लिए पसंद है, बिकॉज आपको पीला फूल खरीदना है, 4 दिन बाद सारे फूल मर जाएंगे. सो हाँ, तो इसलिए आप खरीद रहे हो, तो दैट इज़ योर लग्जरी बिकॉज यू आर पेइंग. बट कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो आप खरीद सकते हैं, जो इवेंचुअली आपको आय होनी चाहिए कि वो बढ़ेगा. इट्स लाइक एनी अदर गेम, एनी अदर प्रॉपर्टी. आपकी ये प्रॉपर्टी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, और ये इन्वेस्टमेंट चलेगा, ये स्टॉक चलेगा नहीं चलेगा. You got to play in luxury to get there, by the way. You can learn. जरूरी थोड़ी है, you can learn. How? You look at a thing which you like, you read about it, study about it, see what's unique about it, and then invest your money into it. So that can also be done without owning one. Build a business out of it, yeah? Yes, बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लोग कर रहे हैं. I know so many people who are doing so amazing an investment. I'm sorry, आप इन्वेस्टमेंट कुछ भी चीज़ का बना सकते हो. और सबसे बड़ी बात मैं लोगों को कहता हूँ, लोग मुझसे जो पैसा आता है ना थोड़ा, कैसा इन्वेस्ट कहाँ करें, प्रॉपर्टी खरीदूँ, ये करूँ, वो करूँ. मैं कहता हूँ भाई सबसे अच्छे काम में, आप किस काम में अच्छे हो, आपको क्या काम आता है, जो काम आपको आता है जिसमें आप एक्सपर्ट हो ना, वहाँ इन्वेस्ट करो. आज आप जिप में, आपको इलेक्ट्रिक चीज़ में पता है, मुझे नहीं पता होंगी, कि आपने कहा सर ऑलरेडी कंपनी है, यू नो अबाउट इट, राइट? बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपनिंग, यू आर एक्सपर्ट इन दैट, यू बिन, सुबह शाम आप वही चीज़ कर रहे हो, तो आपको पता है इलेक्ट्रिक में कहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, इस इंडस्ट्री में कहाँ पैसा लग सकता है. व्हाई यू आर आस्किंग मी देन, व्हाई आर यू गोइंग फॉर द प्रॉपर्टी? क्यों खरीदनी है? क्यों आपको जाके गोल्ड में पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना पैसा ब्लॉक करना है? नो, कीप दैट लिक्विड, इन्वेस्ट इन योर ओन सेल्फ. Absolutely, that's the best thing to do. सो इट इज. बहुत सारे गाने हमारे इतने अच्छे बने, उसमें अपने में भरोसा रखो यार. क्या, क्यों नहीं घबराते? No, absolutely, man. No, this is very interesting. I think बहुत मज़ा आया यार तुमसे बात करके, बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव्स मिले हैं लाइफ के और लग्जरी के. एंड आई होप पीपल हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर जर्नी ऑफ हाउ यू नॉक द फर्स्ट डोर एंड हाउ you've now built the largest luxury magazine possibly. Touch wood, I hope so. एक लास्ट क्वेश्चन. सी ऑल द लग्जरी ब्रांड्स somehow उनके फेक्स भी मार्केट में बहुत हैं, राइट? मैं देखता हूँ हर ऑफिस में 3 लड़के ना हमारे यहाँ बैलेंसियागा की टी शर्ट पहन के घूमते हैं, एंड दैट्स देयर. सो डू द लग्जरी ब्रांड्स नो दैट फेक इज देयर एंड व्हाई दे नॉट स्टॉपिंग, और दे डोंट वांट टू? ऐसे सब ब्रांड्स को पता है, एंड दे वांट टू स्टॉप इट. ऐसा नहीं है कि कोई अपना चाहेगा, आप चाहोगे कि आपका कोई हाँ, बट अंडरस्टैंड करिए कि फेक जो कस्टमर अलग होता है, जो असली खरीदता है वो कस्टमर अलग होता है, और वो ब्रांड को पता है. आज आई डोंट नो, मोस्ट ऑफ द टाइम आई फील, काफ़ी लोग कहते हैं यू कांट स्पॉट इट, बहुत ज़्यादा वो है. बट अ पर्सन लाइक मी, आई कैन वेरी मच स्पॉट इट इंस्टेंटेनियसली, मोस्ट ऑफ द टाइम. मुझे कोई कल परसों तो पूछा था कि यार फेक बैग इतने अच्छे बन जाते हैं. मैंने कहा मैं देख के बता सकता हूँ. सो ही इज़ लाइक, सर कैसे? मैंने कहा दैट इज़, सर मैं ज़िंदगी जी है इसके अंदर, 15 साल में ये काम कर रहा हूँ, तो यू नो
जैसे हीरा वाला हीरे देख के बता देता है असली है ना. हीरा तो आज की काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बिकॉज ऑफ CVDs and everything. But and yeah, you need a machine for that now these days. You can't do that because technically it's a diamond only. It's not different. Lab grown, yeah. Because it's a diamond only. It's not. There's chemical composition. Everything is same. So technically it is same. But most of the time when you see luxury products, it is also कब किसने कैसे कहाँ क्या चीज़ पहनी है. It is not just about the product which I analyze. I also analyze how, when, who, where. I was sitting with a builder, very big, rich guy. उसने एक बड़ी अच्छी रिचर्ड मिल की घड़ी पहनी हुई थी. अब उसको टाटा वाली कहानी याद होगी ना कि मैं टाटा हूँ क्या जाता है. उसका था एक वो सूट कपड़ा टाटा की कहानी थी कि ही यूज्ड टू वेयर कुर्ता पजामा और उनका कुर्ता पजामा फटा हुआ था. तो किसी ने कहा सर आपका कुर्ता कहता क्या एवरीबडी नोज आई एम टाटा. वो प्लेन में बैठे वो US जा रहे थे तो जब US होते थे तो कहा कि सर आपका कुर्ता फटा हुआ है. लाइक कौन जानता है आई एम टाटा. सो उसको लगा मैं पहनता हूँ मैं तो बिल्डर हूँ इतना बड़ा. आई एम रिच गाय हू विल से कि मैं तो आई कैन अफोर्ड. कुछ लोगों को लगता है कि आई एम रिच आई वेयर इवन अ फेक वॉच इट लुक रियल. गॉड ब्लेस यू सिटिंग विथ मी फॉर लंच. आई वाज हैविंग लंच एंड आई सॉ हिज वॉच. आई वाज लाइक मैं 1 मिनट के लिए ऐसा हुआ. मैंने कहा यार हो सकता है मेरी गलती हो सकती है. आई बहुत रिच बंदा है यार. इज़ अ वेरी रिच गाय. इतना बड़ा बिल्डर है. इट्स लाइक रोल्स रॉयसेस हैं हर चीज़ है उसके घर में. एंड मैंने कहा यार मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए वो मैंने कहा नहीं यार इंस्टिंक्ट राइट होती है. मैंने तुम्हें उंगली करनी थी. मैंने कहा ये भाई वॉच दिखाइए ज़रा. एंड ही इज़ लाइक बड़ा हाँ देखना. तो मैं ऐसे वो देख रहा था. कहते असली नहीं है वो. मैंने ना मेरे एक एम्प्लॉय ने पहन रखी थी. मेरे को अच्छी लगी तो मैंने कहा तो बेचारा ही कान अफोर्ड. तो मैंने कहा पहन लेता हूँ. अब ठीक है अच्छी लग रही थी बड़ी सुंदर तो बहुत है. तो कहता है फिर 2 मिनट ले कि यार देखो कैसे बड़े से कि यार आपको मतलब व्हाई डिड यू आस्क मी. मैंने कहा भाई वो उस ब्रांड की गिनती की आई थिंक 2 वॉचेस उस ब्रांड ने एक वॉच उसने बनाई है. वो लास्ट सेलिंग प्राइस ऑफ दैट वॉच जो आपने पहना हुआ है वो था समवेयर अराउंड 85 करोड़. तो मुझे लगा पहले तो मैंने कहा 85 करोड़. और मुझे लग नहीं रहा था कि वो मेरे को पता था किसी उसने रशियन ने वो घड़ी खरीदी थी. सो वो वॉच रशिया से इंडिया आ गई मुझे पहले तो पता नहीं. ये तो न्यूज़ है. और मैंने कहा भाई फेक अगर पहननी भी है तो एटलीस्ट वो तो पहन लो बिकॉज अगेन यू नीड नॉलेज फॉर दैट. 2 ही बनी है और उनमें से एक एंड आप लगे और आप पहन के घूम रहे हो नॉर्मल उसमें वो भी नॉर्मल एनवायरनमेंट में आप घूम रहे हो लंच कर रहे हो बिजनेस मीटिंग में. So again, knowledge plays a lot. You have never learned about the brand. You have never studied the brand. You have no idea कि वो असली में कैसा है, उसकी इंटीग्रिटीज कैसी हैं. आपने देखा ही नहीं, आप दुकान में घुसे ही नहीं हो कंपैरिजन करने, वो पता ही क्या है. So नकल के लिए भी अकल चाहिए. नेक्स्ट टाइम जब आप लग्जरी फेक पहन रहे हो तो उस रूम में मत जाना जहाँ पे लग्जरी पकड़ी जाएगी. नहीं पहली बात तो मैं कहता हूँ देखो लग्जरी फेक पहनी क्यों रहे हो. आपके लिए ना आप साइकोलॉजिकली कभी कंफर्टेबल फील नहीं करोगे. आपको हमेशा उसमें एंड यू नीड टू फील कंफर्टेबल. आप एक रूम में जा रहे हो ना यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट योरसेल्फ. मेरे द प्राइस टैग दैट यू पे फॉर. नहीं मेरे बाल खराब हैं वो हैं. इट बूट्स ईगो. लेट मी वेरी वेरी मच ऑनेस्टली स्पीक इट इज लाइक अ कॉम्प्लीमेंट टू यू. आज एक आप किसी रूम में घुस रहे हो मैं 4 लोगों ने आपको कहीं सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज यू लुकिंग वेरी नाइस. आपको क्या होता है आपको कॉन्फिडेंस प्रूफ हुआ है. फिर क्लाइंट मीटिंग में जाओ उसमें आपने फोड़ के जाओगे बिकॉज योर कॉन्फिडेंस इज राइट. और कोई ऐसे ही बोल दे सर क्या है आपकी शर्ट पे ना वो दाग लगा है वो कॉफ़ी गिरी हुई है देख लेना ज़रा आपकी वो ना. तो आप जाओगे ना ऐसे सर ऐसे करते रहोगे कि सर नहीं वो थोड़ा ना ऐसे करते रहोगे. आप बैठे होगे आपका साइकोलॉजिकली यू विल बी स्टक सेम वे एज अ वॉच और अ टी शर्ट. इफ इट्स फेक the other person might not realize you're wearing a fake. उसको शायद असली लग रही हो but psychologically somewhere it matters, it hampers your comfort. और दूसरी बात क्यों फेक लेनी है यार. आप रियल लोगे तो कभी उसकी कुछ तो वैल्यू रहेगी. लग्जरी की हमेशा याद रखो वैल्यू हमेशा रहती है. अगर वैल्यू बेचने की ना हो एटलीस्ट योर माइंड हैज दैट वैल्यू. सर बेचने में क्यों ना हो मतलब ठीक है आई वोंट से दैट एवरीथिंग इज सेलेबल. मान लिया मैं मानता हूँ व्हेन यू ओन लग्जरी ओन एट दैट. मैं आज
जिंदगी का ना किसी कुछ नहीं पता होता. लोग क्यों कहते हैं सोना खरीदो, कल वॉर हो गया, कुछ हो गया. आई कैन एग्जिट आउट ऑफ इट, करेक्ट. इट्स समथिंग यू कैन एग्जिट. डायमंड्स लोग कहते हैं बहुत लग्जरी क्यों बोलते हैं डायमंड्स को. वो डायमंड्स की कोई वैल्यू नहीं रहती, आप बेचे जाओ कुछ नहीं मिलता. तो मैं हमेशा कहता हूँ कि लाइफ में यू नेवर नो व्हाट इज देयर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर इन द लोग लग्जरी खरीद रहे हैं, उनको दे ऑनेस्टली शुडंट बी बाइंग लग्जरी. सच्ची बात बताऊं, आप उस पोजीशन में नहीं पहुंचो कि आप Balenciaga की टी शर्ट पहनो. पहले तो आप ये सीखो अपने लिए. अभी आप पहले तो वहां पहुंचो, ठीक है, बट फिर भी आपका शौक है, आपको पसंद आ रहे हैं. मैंने पहले बोला आपको अगर कोई जूते पसंद आ रहे हैं और आपको चाहिए ही चाहिए, आपको 10 रुपए का फ्लार नहीं चाहिए, आपको 40 रुपए वाला फ्लार चाहिए, बिकॉज आपको यू आर कनेक्टेड टू इट. ठीक है, गॉड ब्लेस यू, खरीदो, बट असली खरीदो. कल को अगर आपको निकालना है उसे, उस 40 रुपये फिर भी कहीं 15 रुपये 20 रुपये दे देगा इंसान. और आजकल इतनी वेबसाइट्स हैं, सब कुछ हैं, इंडिया इंटरनेशनली, आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगी. बट अगर आपने वही इसका फेक ले लिया ना, उसकी ज़ीरो वैल्यू है. और आज के ज़माने में जो अच्छे हाई एंड फेक्स आते हैं, दे आर नॉट चीप. यू स्टिल पे ऑलमोस्ट अबाउट 35 to 40% ऑफ द प्रोडक्ट वैल्यू टू बाय दैट. तो व्हाई विल आई बाय? उल्टा गो एंड बाय यूज्ड. बिल्कुल सही है. हाँ, दैट्स द गुड पॉइंट. आप 35-40% में यूज मिल जाएगा. सर Pre-owned is a big category which is coming in luxury. yes, you can go and buy it. You can still go and buy and acquire it. Is there a platform in India where you can get pre-owned luxury items? I think yes, there are quite a few. There are quite a few. अगर नहीं है तो बनाओ, business idea है. Yeah, it's a quite a few and अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं और लोग बेच भी रहे हैं. कुछ लोग अपग्रेड करना है. कोई कहता है यार मैंने अभी ये खरीद लिया, और पर्सोना चेंज हो जाता है ना, इंसान का पर्सोना बदल जाता है. You want more? You want something else? मेरे साथ भी होता है. कभी कभार कलर इंसान भी लगता है आई स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स. मेरे को लगता है नहीं यार अब मैं स्वेट शर्ट्स नहीं पहना. आई वांट टू स्टार्ट वेयरिंग ब्लेजर्स. Maybe as you mature up, as you grow up, Keep changing your style also. and what will I do? I have wardrobe. What will I do with my wardrobe? I'm not going to keep it. I'm going to throw it away. And you don't want to throw it because मेरे पास एक बहुत अच्छा जूता था रोबोटिक वाली का. मैंने खरीदा, बहुत एक्सपेंसिव, and I loved it. I bought it, but it had no grip, and I used to keep slipping on slippery floors. पैर ऐसे हो गया, पैर ऐसे हो गया. एक दो बार तो मैं गिरते गिरते बचा. तो मैं गुस्से में मैंने कहा क्या जूता है, हटा दिया. मैं नहीं पहना है, मैं गिर जाऊंगा, मुंह टूट जाएगा मेरा. ब्रांड न्यू जूता, एक्सपेंसिव जूता, मैं साइड रख दिया. कुछ टाइम बाद मैं ऐसे ही देखा मेरे ड्राइवर के जूते पहने उसने कोई. मैंने कहा भैया ये जूते कहाँ से मिले आपको? कहते वो माई फादर, बाबूजी ने दे दिए थे मेरे को. जूते मेरे ख़राब हो गए थे, फट रहे थे, तो उन्होंने निकाल के वो जूते दे दिए. तो मैं डैड के पास गया. मैंने कहा डैड आपने यार रोबोटिक वाले जूते उनको दे दिए, ड्राइवर को दे दिए. कहते बेटा सड़ रहे थे, तुम तो पहनते नहीं हो. वो तो मेरे सुन नहीं आए इतने टाइम से थे. मैंने कहा किसी गरीब को फ़ायदा हो जाएगा, उसके पैर कट रहा था, जूता फटा हुआ था बेचारे का, तो मैंने दे दिया. फॉर यू हैड नो वैल्यू ना, तो आई आर यू फीलिंग बैड अबाउट इट? यू हैड नो वैल्यू फॉर इट. उस बेचारे काम आ गया, उसको क्या फर्क पड़ता है रोबोटिक को, जूते चाहिए थे. आपके सड़ रहे थे, उसके काम आ गया. बट देन आई सेड यार नो वैन, बट ठीक है, गॉड ब्लेस हिम, बट मैं बेच भी सकता था, इतने एक्सपेंसिव जूते थे. मैं बेच देता, मुझे समझ नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आए. सो ऑलवेज यू नेवर नो कोई इंसान कब क्यों कैसे करना चाह रहा है, क्यों बेचना चाह रहा है. सो येस, व्हेन यू बाय समथिंग दिस हैज सम रीसेल वैल्यू टू इट. कल को इफ आई डोंट वेयर इट और आई हैव आउटग्रोन इट, आई हैव बिकम फैट, और एक्चुअली व्हेन माय स्टेटस आई हैव आउटग्रोन इट, आई वांट टू वेयर मोर एक्सपेंसिव क्लोथ्स और मोर एक्सपेंसिव वॉचेस और मोर एक्सपेंसिव, एंड आई हैव बीन सक्सेसफुल इन माय लाइफ. अब उनका मैं क्या करूंगा? बट अगर ओरिजिनल होंगे तो कुछ तो वैल्यू मिलेगी, फेक होंगे तो जीरो है. So that's it. Super. Thank you so much for adding that piece too. Thank you. Cheers, buddy. Thank you. मजा Thank you आया so आपके much. साथ. God bless. Thank you so much. Take care.